So good afternoon, all of you. How are you people? All good? One thing is very important for all of us. And if you all agree, then we'll discuss on this topic. And that thing which in fact is very, very important, that is called personality. That is called personality. We believe that personality is a personal asset which you always carry with you. Till the time you go to your grave, this is going to be with you. So if somebody asks me, where shall I work maximum? I always recommend people to work with their personality maximum, because this is what you are carrying all the time. So when we say personality, basically we are talking about two dimensions of it. One dimension is called an inner dimension of the personality, and second dimension is called the outer dimension. So in brief, if I ask you that how many dimensions are there of your personality, what is your answer? Two dimensions. One is inner and one is outer. Now when we talk about these two dimensions, so there are two processes by which we work on it. One is called grooming and second is called development. What do we call one? Grooming. And second is? Development. Now grooming is an outer process. When you work on your look, when you work on your dressing sense, when you work on your hairstyle, when you work how to sit, when you work how to stand up, this is called grooming. If you ever see a hostess, she is well groomed. Yes or no? If you ever go to a company, big company, and you ever meet the receptionist of that company, so that receptionist is well groomed. But whether she is developed or not, it is a question. It is a question. Development is not an outer process, it is inner process. So which is important? Is it personality grooming which is more important for you, or you believe it is personality development which is more important to you? Your answers. Which is more important, personality development or personality grooming? Guys, थोड़ा जोर से बोलो. तुम लोग जवान लोग हो, खा के आए हो. Yes? Personality development. Why? We have been programmed to give good answers. You know, that is a problem. So we think that, okay, inner development, it means it is very good. So we should say personality development is important. Why personality development is important? Why not grooming? Is it a complex question? It's simple, na? Because real development is always an inside-out process. Boliye, inside-out process. One more time. One more time. That means the moment you start working within, outer development will automatically happen. When you see yourself, all the challenges which you face in your life are basically issues of your inner only. If you feel nervousness, is it outside or inside? When you feel lack of confidence, is it outside or inside? When you feel anger, is it outside or inside? When you feel frustration, is it outside or inside? That means every emotion which I am going through and is troubling me is basically happening in my inner world. And I see the manifestation of it happening in the outer world. So if I want to bring change in the outer world, I cannot bring change by fighting with the outer world. In order to bring a change, I have to go within and work with it. The moment I go inside and work with those emotions, work with all those negative traits of mind, then change happens. Agree, disagree? Say loudly, agree, disagree? Agree. That's why we say that development is important. But is development only important? No, both are important. Why? Because we are living in a world where we buy two kind of things. One which is beautiful and second which is useful. हम जब भी बाजार में जाते हैं, हम दो तरह की चीज़ लेकर आते हैं. एक वो जो हमारे काम की होती है और दूसरी वो जो सुंदर होती है. लेकिन सबसे बढ़िया कौन सी होती है? जो सुंदर भी है और हमारे काम की भी है. That means I need to develop myself as well as groom myself. So grooming is not very tough, but development is a little tough. So we'll talk more about development today. Are you all ready for it? So when we say personality development and we say it is important and we say it is an inside process, we need to understand that in today's world, which dimension of personality development is of utter importance. Can anybody tell me that in 21st century, if somebody really wants to get maximum out of his personality, so what one skill he or she must work on so that he can get the maximum benefit out of it?
अगर हम बोलें 21st सेंचुरी में मुझे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, तो ऐसी कौन सी स्किल है जिस पर व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए ताकि उसको बेनिफिट मिले? So the skill which in fact is in demand in 21st century, we call it communication skill. We call it, and when we say communication skill, it means आपकी जो बात करने की कला है, किसी के साथ संवाद स्थापित करने की कला है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल. पहले हम इसको मोटा मोटा समझेंगे, फिर हम इसके सटलर पार्ट को जाएंगे. पहले हम इसके ग्रॉसर डायमेंशन को समझेंगे और फिर हम इसकी गहराई में उतरेंगे. एंड आई एश्योर यू कि जो तुम सुनोगे उसमें बहुत कुछ नया होगा. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन है क्या, so that you can really work on it. When we say communication skills, so we have to work majorly on how many areas? 3 areas. Boliye, how many areas? 3 areas. So when we say communication skills are very important, what basically we are saying is we have to work on 3 areas. And anybody who works on these 3 areas ultimately reaps the benefit. Now these 3 areas, the one you are coming here to work upon primarily, that area is called verbal communication. Boliye ek bar. That means whosoever says that I want to be a good communicator, the very first thing which he has to work upon is his verbal communication. What does it mean? It means that I have to talk to somebody in language. Either I'm going to speak in Hindi or in Punjabi or in English. I need to ask this question to myself. Do I have hold on this language or not? If I want to talk to you in Hindi, my Hindi has to be good. If I speak to you in English, my English has to be good. It means my verbal communication has to be good. So when we go and face interviews or when we stand on the stage and deliver presentations to people, most of the people face this challenge that their verbal communication is not good. And when their verbal communication is not good, what happens with them? They are not able to express themselves properly. So all the people who are sitting in this room, those who say that I want to develop my personality, they need to be very honest with themselves and ask this question, that are they putting efforts in the direction of improving their verbal communication or not? When we say efforts in the direction of improving verbal communication means what? One, when I speak to people, I need to be fluent. When I speak to people, I need to have clarity. When I talk to people, I need to have good collection of words. And at the same time, when I talk to people, I need to have command over it. क्या मेरा बात करते हुए शब्दों का चयन अच्छा है? जब मैं लोगों से बात करता हूँ, क्या मेरी बात में जोश होता है या नहीं होता? अगर ये नहीं है, तो मेरा कौन सा हिस्सा कमज़ोर है? Verbal communication. And I tell you, majority of the people are having weak verbal communication. When their verbal communication is not very good, they don't have the confidence of speaking. But when their verbal communication is good, they know कि उनके पास art है, उनके पास कला है, वो बोल पाएंगे. And when they have got this ability of speaking, choosing right words, choosing right sentences, they are able to express themselves very well. So all you people sitting in this room, what is the first area which you need to work upon? And if you have to work on your verbal communication, what are the steps which you need to take? In order to get command over the language, what is it which you need to do? Okay? Okay? जैसे अभी आप लोग यहाँ सभी आ रहे हो, इंग्लिश सीखने के लिए आ रहे हो, राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि आप इंग्लिश में अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को कैसा करना चाहते हो? स्ट्रॉन्ग. उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस. ओके, और बोलिए. रीडिंग. ओके, ओके. दिस साइड मारो, तुक्का मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, चलता है. इंप्रूव इन स्पीकिंग स्किल. उसके लिए क्या करना है? Like when I'm talking to you in English language, or if I speak to you in Hindi language, what is it which I have done because of which I'm able to speak to you confidently or fluently? What is it? Right now when I'm talking to you, my dear friends, listen very carefully. There are 2 systems involved. How many systems? 2 systems involved. One is my muscular system and second is my neuro system. पहला कौन सा है? Muscular, second neuro. When I'm talking to you in English language, there are certain muscles of my body which are moving. My lungs are expanding when I'm talking to you. My jaw is moving when I'm talking to you. My lips are moving when I'm talking to you. My tongue is moving when I'm talking to you. My vocal cord is creating a sort of disturbance to the air which goes inside when I'm talking to you. It means my muscular system
has to get enough practice of that particular language in which I want to talk to people. Now the question for you is your muscular system getting enough practice of English or not? If answer is no, a good news for you, you will never be able to speak fluently. How many of you believe कि जब हम भाषा को सीखते हैं तो हमको उसको समझना पड़ेगा? समझकर सीखना चाहिए, रट्टे मार के सीखना चाहिए? स्पीक लाउडली, एकदम जोर से बोलो. You all are wrong. You all are wrong. भाषा में समझने के लिए कुछ है ही नहीं. क्या समझोगे? डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ आईएनजी, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज बीन के साथ आईएनजी, टाइम के लिए सिंस और फॉर लगता है, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है. हार्डली 15 days ऑल दीज फॉर्मूलाज कैन बी अंडरस्टूड बाय यू. But when you talk to somebody, it is not understanding which is required. What is required is habit of speaking that language, and habit of speaking any language develops only when you repeat and repeat and repeat. What is habit? Anything which is done again and again till it becomes automatic is habit. Agree, disagree? किसी भी चीज को आप तब तक करते रहते हैं जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए, तब तक वो आदत नहीं बनती है. एंड इफ यू वांट टू टॉक टू पीपल यूजिंग अ मस्कुलर सिस्टम, यू हैव टू ब्रिंग इंग्लिश टू अ लेवल ऑफ हैबिट. एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग इट टू अ लेवल ऑफ हैबिट, you have to repeat it. And the moment you keep repeating, what are you doing? Basically याद कर रहे हो आप चीजों को. Somebody told you that if ever somebody is not doing right thing in front of you and you are angry, so in anger you will say तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या? So in English you say, are you gone mad, have you gone crazy, or what the hell are you doing? कितने सेंटेंस हैं यहाँ पे? 3. Have you gone mad, are you crazy, what the hell are you doing? That's all. तुमको याद करना पड़ेगा, इसको बार बार बोलना पड़ेगा. जब तुम बार बार बोलोगे, कहाँ चढ़ गया तुम्हारे मस्कुलर सिस्टम पे? कहाँ आ गया? मस्कुलर. अब तुम बड़े तमीज से पढ़ रहे हो उसको. हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी, क्या तुम दीवाने हो? व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या? इट वॉन्ट कम टू यू. Why? Because तुम्हारे किसको नहीं मिल रहा है? Muscular system को नहीं मिल रहा. So what is the first system involved in communicating with people when we are using a verbal language? Muscular system. And what is the pattern of giving practice to it? We have to see that what organs are involved in it. I have to see what can be done in order to make those organs habitual of English language. And I came to know my vocal cord is involved. I came to know my jaw is involved. I came to know my lungs are involved. I came to know my tongue is involved. I came to know my lips are involved. कुछ नहीं करने का, एक किताब उठाओ, ऊंचा ऊंचा आवाज में पढ़ो. जब तुमको मौका मिला, एक कमरे में जाओ, किसी एक पैराग्राफ को उठाओ, लाउड आवाज में पढ़ो. सारे ऑर्गन्स का प्रैक्टिस होगा या नहीं होगा? अग्री, डिसअग्री? So this is first system which requires to be worked upon when you say that I have to make my verbal communication strong. अगर इच्छा नहीं है तुम्हारी तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं. फिर तुम यहाँ आओ, रोज आओ, 3 महीने का कोर्स करो, फाइन, कोर्स पूरा हो जाएगा. एक छोटी सी गलत फहमी लेके जाओ कि मुझे इंग्लिश आ गई, लेकिन जब वक्त आएगा और 10 लोग होंगे और तुम भी खड़े होगे तो तुमको महसूस होगा कमी रह गई. क्योंकि हो सकता उन 10 में से 5 ऐसे थे जो वो गदर थे और तुम उनके आगे खड़े नहीं हो पा रहे. Are you understanding it or not? You are living in the most populated country. So there are advantages and disadvantages of living in a populated country. The advantages are बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं. डिसएडवांटेज क्या रहता है? कंपटीशन बहुत रहता है. And when there is too much competition, definitely the first priority will always be given to the people who are highly skilled. And you will be noted the moment you'll open your mouth. जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपकी पहचान होती है. और उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है आपके आगे? Verbal communication. Agree, disagree? Second, when you talk to people, you need to have good collection of words. I must be capable of using right word at the right time. If I'm not using right word at the right time, my articulation will be affected. My expression would be affected. And at the same time, I need to have freedom of forming sentences. And how do we develop freedom of forming sentences? By studying the grammar rules. I must know that I have to say this thing. If I want to say this thing, I should have variety of ways saying the same thing. And when I'm able to say the same thing in variety of ways, my language will not appear monotonous. मेरा भाषा बोरिंग नहीं दिखाई देगा. My language will not appear monotonous. Monotonous बोले तो boring. For example, this is one sentence.
the sales of the car has significantly increased. What did I say? The sales of the car has significantly increased. यानी कि बहुत तेजी से गाड़ियों का सेल बढ़ गया है. This is one way of saying the sentence. No, I said there is a significant rise in the sales of the car. दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन पहला सेंटेंस मेरा क्या है? There is a, here I said that there is a significant rise in the sales of the car, and in another sentence I said the sales of the car has significantly increased. In one sentence I am using significant, in another sentence I am using significantly, but meaning of both sentences is same. एक जगह पर मैंने शब्द को adverb के रूप में यूज किया, एक जगह मैंने शब्द को adjective के रूप में यूज किया. तो इससे मुझे क्या मिली? बोलने की freedom मिला. Are you understanding it? Getting it or not? So what is the first area which you need to work upon when you say I have to work on my communication? Verbal communication. When you say verbal communication, when will you be able to speak confidently to people? When you will practice it. बहुत से लोग आते हैं, बहुत से मोटिवेशन वाले लोग आते हैं, बोलते हैं इंग्लिश बोलो, बस बोलो आ जाएगी, और कुछ मत करो, बोलो आ जाएगी. तुमको लगता हो जाएगा ऐसा? Let's say you sit at the computer, okay, and you want a beautiful picture in a printout. And you simply press the button print, and you find a blank paper coming out. Again you give the command print, again the blank paper is coming out. Why? Because input has not been given. Input has not been given. First you have to find out that picture which you want to have on the printer, and then you take that picture and then you paste it on this particular page, and then you give the command print, so picture will come. Otherwise it will not come. It means if I have to learn, if I have to speak something, first I have to learn that. I have to practice that. Then only it will come as an output. Simply if I start speaking, not learning new things, not practicing new things, what will happen? I'll keep repeating what I'm knowing. If new thing is not coming, how would I speak something new? मैं वही करता रहा जो मैं करता हूं, तो मेरा परिणाम भी वही रहेगा. If I want to change the result, I have to change the action. If I don't change the action, result will never change. If you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. If you want that I should get something better, you have to change what you are doing. अगर आप वही करते रहे जो आप कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है. अगर आप चाहते हो कि मुझको कुछ नया मिले, तो जो तुम कर रहे हो उसको बदलना पड़ेगा तुम्हें. Agree, disagree? So this is very very important. पहला एरिया कौन सा हमारा? जोर से बोलिए. And verbal communication, what have we to do? We have to give practice to what? Vocal organs. किसको practice करना है? Vocal organs. If I have to give practice to vocal organs, what have I to do? I have to do loud reading. I have to do drama. I have to shout. If you ever go in army, the practice which is given to them for confidence building is, they are advised not to speak slowly at all. They are always advised, always commanded to give a very powerful, loud response. Did you see a movie, Uri? So the man says, how is the Josh? They say, hi sir. Again he says, how is the Josh? Then they shout, hi sir. Why? Because the moment you shout, your lungs expand to maximum capacity. And when your lungs expand to maximum capacity, they get the required air which is needed for speaking with confidence. So when you say that I want to have command over my verbal communication, but if your lungs are not getting proper practice, you won't get that. तो मेरे को ये मानना पड़ेगा, खुद को ये समझाना पड़ेगा that if I have to be a powerful speaker, if I have to be an impressive speaker, I got to read things loudly. I got to shut myself in the room and take a small paragraph, learn it, and then speak it loudly. Why? Because I love myself. I love my personality, and I want to enjoy that confidence which I'll get when I'll be speaking in front of an audience. मुझे वो आनंद चाहिए जो मुझको लोगों को बोलते हुए मिलेगा, जब लोग मुझे देखेंगे कि wow, what a powerful speaker he is. When I'll sit in the interview and the person will ask me question and I'll give him magnificent reply, you'll feel good. तुमको मालूम है वो प्रभावित हो रहा है तुमसे. तुम मालूम है तुम बोलना चाह रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो. तुमको मालूम है अंदर शर्म आ रही है तुमको. उसको कैसे दूर करोगे? काम करके. चाहने से नहीं होगा, करने से होगा. क्या होगा? करने से. चाहने से नहीं होता. Are you understanding it or not? और करना क्या है? I have to give practice to my vocal organs. So every sentence which teacher is teaching me in the class, I'm going to go home and read it louder.
Every topic which teacher is teaching me in the class, I'll go home and practice it louder. I'm going to watch good speakers, those who have got good communication. See, nowadays it's very difficult to find good speakers. Lot many people listen to the speakers on the YouTube, but unfortunately they are bad speaker. Very few speakers are good speaker. Listen to them. They can help you out. Watch them carefully. See what sort of body language do they have. See what sort of verbal command they have. All young people, if you want to listen to this man called Vivek Bindra. He's a good speaker. Whether you like him, you don't like him, no problem. But he's a good speaker. Right? Right now your requirement is what? मेरे को मस्त बोलना है. कैसा बोलना है? Must एकदम. The other person should be impressed by me. And if I want to make those people impressed, I have to work on my verbal communication, because in India, people understand two languages, one Hindi and second English. तो अगर मैं हिंदी में किसी के साथ संवाद करूं, मेरा वार्तालाप उसको प्रभावित करने वाला होना चाहिए. मेरी हिंदी पर भी पकड़ उतनी ही खूबसूरत हो जितना होल्ड मेरा इंग्लिश के ऊपर है. Two languages I got to master very well. One is my Hindi and second is my English. And then comes second area. Second area is you yourself, your whole body. So first is my verbal communication and second is called my non-verbal communication. बोलिए एक बार. One more time. One more time. So first is my verbal communication. I'm going to give practice to my vocal organs. I'm going to learn a lot of words. I'm going to speak them louder and I'm going to learn sentences and use them powerfully. Second is my body language. I have to work with my body movements. I have to work with the posture. I have to work with the gesture. I have to work with my hand movements. I got to work with my expressions. Why? Because आदमी जब आपको देखता और आपको सुनता है तो ना केवल वो आपको सुन रहा होता है, वो आपको देख रहा होता है, और जो आप बोल रहे हो अगर वो आपके शरीर से मैच नहीं कर रहा है तो उसको आपको सुनने में आनंद नहीं आता है. और विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मोर देन ऑडियो इंपॉर्टेंट होता है वीडियो. क्या होता है इंपॉर्टेंट? Video. Do you remember? How many have seen this movie called Sholay? शोले फिल्म देखा तुमने, धर्मेंद्र का और अमिताभ बच्चन का? ओके. डू यू रिमेंबर दैट सीन जिसमें अमिताभ बच्चन पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और मरने के लिए खड़ा हो जाता है पानी की टंकी पे? यस और नो? अमिताभ बच्चन ऊपर चढ़ जाता है पानी की टंकी पे. ओह, इट इज धर्मेंद्र. इसको याद है? देखो आज भी. तुमको कैसे याद है? क्योंकि तुमने उसको देखा है. अब तुमको मैं शोले फिल्म की पूरी एक नॉवल दे देता और बोलता बेटे ये पढ़ो, शोले मूवी है, तुम पूरी पढ़ लेते. तुमको याद रहता कि टंकी पे कौन चढ़ा था? तुमको क्यों याद है? क्योंकि वीडियो देर तक दिमाग में रहता है. तुमको वो सीन याद है कि वो खड़ा था. तो जैसे मैंने बोला अमिताभ, तुमको डाउट हुआ, अरे अमिताभ तो नहीं था, कौन था? धर्मेंद्र था. So you can be forgotten for your verbal communication, but you will never be forgotten for your non-verbal communication. How were you looking when you were standing or sitting over there? Were you decent or not? Were you able to create that upper hand on the audience or not? When you were sitting, was your body emitting positive vibes or not? Your body always going to act in two ways. Either it is going to attract people towards you or it is going to repel people from you. या तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे या फिर आपसे रिपल्शन क्रिएट होगा. एंड अननोइंगली वी डोंट वर्क ऑन आवर बॉडी लैंग्वेज. इस वक्त तुम सब जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारा चेहरा जो मुझे देख रहा है, ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है. कोई उदास बैठा हुआ है, किसी के चेहरे पे ऐसे लग रहा है गम है ना, तो दुखी सा है थोड़ा. अच्छा, अब क्या होगा अगर तुमने इसको आज ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक नहीं किया, जो 24, 25, 26 के हो जाओगे, तुमको इंटरव्यू देने जाना होगा. तो इंटरव्यू से पहले तुम किताब पढ़ोगे, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू. तो उसमें तुम पढ़ोगे, लिखा हुआ है यू नीड टू स्माइल. अब तुमको टेक्निक पता चल गया कि इंटरव्यू देने से पहले क्या करना है? स्माइल. अब सीख लिया, दिमाग को पता चल गया कि स्माइल करना है. शरीर को तो पता नहीं है. तो तुम इंटरव्यू टेबल पे जाओगे, वहां बैठोगे और वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अंदर से दिमाग बोलेगा स्माइल. तुम्हारा मुंह हंसेगा नहीं, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है. वो कहेगा कैसे हंसू, तू हरामी, कभी हंसा नहीं, आज मेरे को बोलता है हंस, मैं नहीं हंसूंगा, क्योंकि मसल्स हंसती हैं ना. अब चेहरा तो तुम्हारा दुखी रहा हमेशा, उसमें कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुआ स्माइल का. किताब में तुमने पढ़ लिया कि व्हेन यू गो टू फेस एन इंटरव्यू एंड यू सिट एंड यू टॉक टू पीपल, यू नीड टू स्माइल. बट इन योर डे टू डे लाइफ यू हैव गॉट अ वेरी सैड फेस. तो तुम्हारी स्माइल निकलेगी? नहीं निकलेगा. निकली भी तो कॉन्स्टिपेटेड स्माइल होगी. And that will give a bad impression.
So what does it mean? It means I need to see myself and see that when I walk, is dynamism coming out of my body or not? When I sit, is dynamism reflecting from my body or not? When I stand, is there dynamism in my body or not? If it is not there, I have to work very minutely on it. Why? क्यों काम करना है? क्योंकि मुझको खुद से मोहब्बत है. क्यों काम करना है? क्योंकि मुझे खुद से मोहब्बत है. The only person you have to love in your life is you only. जीवन में अगर किसी एक व्यक्ति से तुमको करना एक से ही चाहिए, ज्यादा से नहीं. ये अलग बात है तुम लोग ज्यादा से करते हो, एक से ही करना है. मोहब्बत हमेशा एक से होनी चाहिए. और वो एक कौन है? वो तुम खुद हो. There is nobody else. You have to love yourself. And when you love yourself, you know that if I stand, if I sit, if I talk to people, they must feel good in my company. You might have experienced many times, you sit with somebody for a few minutes, and when you wake up from there, you feel good. He didn't talk much to you, he talked little to you. You sat with him and you went from there, but you felt very good. And you might have experienced this also, that sometimes you sit with somebody for a few minutes, he didn't talk much to you, but when you woke up from there, you felt very, negative from there. Yes or no? ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति के साथ आप थोड़ी देर के लिए बैठे, उठ कर गए, आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ. दूसरे व्यक्ति के साथ बैठे, उसने भी कुछ ज़्यादा तुमको नहीं बोला, लेकिन तुमको अच्छा महसूस नहीं हुआ. उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो स्ट्रांग था, उसके भीतर का जो एनर्जी था वो स्ट्रांग था. तो उसका जो ऑरा क्रिएट हो रहा था उसके आसपास, वो कैसा था? स्ट्रांग. दूसरा व्यक्ति भीतर से नकारात्मकता से भरा हुआ था, उसको खुद से मोहब्बत नहीं थी. और जिसको खुद से मोहब्बत नहीं होती है, उसके भीतर कौन सी एनर्जी होती है? नेगेटिव एनर्जी. इनको हम बोलते हैं एनर्जी वेम्पायर्स. क्या बोला जाता है? एनर्जी वेम्पायर्स. ऐसे लोगों से बच के रहो. वाई? बिकॉज वो तुम्हारा एनर्जी सोख लेते हैं. If you sit with these kind of people, in few minutes you will feel exhausted, you will feel tired, because they suck your energy. Agree, disagree? So how to work on my body language? The very first thing which you need to know is, this is you, right? Standing, okay? So, इसको 3.5 हाथ की काया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको नापोगे तो हर किसी का 3.5 हाथ निकलता है ये, okay? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बाबा लोगों की बात ध्यान ज़्यादा गंभीर नहीं लेनी कि बेटा क्या है, ये तो शरीर है, इसमें क्या रखा है, हम तो आत्मा हैं, है ना. भूख तो लगती है शरीर को, ठीक है, दर्द भी होता है शरीर को, और आत्मा है, ठीक है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो आत्मा बैठी किसके भीतर है? इस शरीर के भीतर. तो अगर मान लो मैं किसी यात्रा पर निकला हूं और मुझे उस यात्रा को एंजॉय करना है, तो तुमने कोई सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी खरीदा जिसके एक टायर में हवा कम है, साइड से आवाज़ आ रही है, और तुमको डर भी है कि कहीं इसका ब्रेक फेल ना हो जाए या कहीं इसका कूलेंट ना निकल जाए. ऐसी गाड़ी में बैठ के तुम सफ़र कर रहे हो. और दूसरी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है जिसका एसी मस्त काम कर रहा है, चारों टायर एकदम बढ़िया चल रहे हैं, और अंदर बैठे हो, रोल अप किया हुआ है विंडो, कोई साउंड नहीं आ रही है, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चल रही है. किस में मजा आएगा? ये वाली में ना, खराब वाली में तो नहीं आएगा. तो सिमिलरली व्हेन यू आर लिविंग दिस लाइफ and you have to live this life, this body is your carrier, this body is your vehicle. So how do you enjoy this life when this body, this vehicle is healthy? Agree, disagree? जब मेरा ये शरीर रूपी वाहन खूबसूरत होगा, मैंने इसको बढ़िया से रखा होगा, इसके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होगी, तब मजा आएगा. या तब मजा आएगा जब इसमें से अलग अलग आवाजें निकल रही होंगी, तभी मजा आएगा ना, जब बिल्कुल सेट होगा. तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ओके, बट ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा भी तभी चैन से बैठेगी जब ये शरीर ठीक होगा. यस और नो? Getting it or not? So I need to work with my body language. When I'm working with my body language, the very first thing which I need to ask is, when I stand in front of people, do I have good posture or not? So I have to work with my posture. एक चीज जिस पे मुझे काम करनी है वो मेरा क्या होगा? Posture. When I sit and when I stand, do I look elegant, confident, dynamic or not? If not, I have to work my posture dynamic. I have to make my posture elegant. मुझे अपना sitting posture as well as standing posture दोनों ही कैसे बनाने हैं? Decent बनाने हैं. You see this movie उरी? उरी फिल्म देखा? तो ये जो ऑफिसर होता है कमांडो, what is his name? जो ये ऑपरेशन पे जाता है, हीरो क्या क्या नाम है जिसको कैटरीना मिली? हाँ, विक्की कौशल. तो इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा लगता है? शानदार लगता है ना, एकदम स्ट्रेट खड़ा है,
और पूरा लीड कर रहा है, सामने भी जो सारे कमांडोज खड़े हैं कैसे लग रहे हैं, एकदम मस्त। अग्री डिसअग्री? तुम्हारा भी बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। क्या अच्छा था उसका? पोस्चर बढ़िया था उसका। क्या अच्छा था? पोस्चर। जब वो बैठ रहा है कुर्सी पे तो उसके बॉडी से कॉन्फिडेंस झलक रहा है, जब वो खड़ा हो रहा है तो उसकी बॉडी से क्या झलक रहा है? कॉन्फिडेंस। So you need to ask that when I stand or when I sit, do I have a dynamic posture or not? And by reading book, it will not come to you. By listening to me, it will not come to you. It will come to you when consciously every day you will practice on it. For coming at least 90 days, you have to sit in a particular way. You have to stand in a particular way. Watch somebody you say has got good posture. Watch him carefully. He may be Shah Rukh Khan, he may be any speaker, he may be anybody in your locality, in your home. Your papa may have a good posture, your uncle may have a good posture, your teacher may have. Watch him and say, yes, ye wala style mere ko acha laga, I want to stand like him, I want to sit like him. Follow him for a few days. Watch him for a few days. Imitate him for a few days and sit in the same posture, stand in the same posture for at least 90 days. When you will do it for 90 days, after 90 days, it will be your posture. 90 दिन की यात्रा के बाद जो भी पोस्चर पे तुमने काम किया, बैठकर खड़े होकर, वो किसका हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा. Right? Second, you need to see that when I'm talking to people, am I able to use my hands and face or not? Because when I'm talking, in order to express myself, मुझे अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और मुझे अपने चेहरे का भी इस्तेमाल करना होता है. Am I working on my expressions or not? Am I able to move my hands freely? Like as I'm talking to you right now, so in one hand I've got a mic, with the other hand I'm moving. Why? Because I want to give you video also. I want to give you वीडियो ऑल्सो. सिर्फ आवाज ही सुनोगे तो बातों को भूल जाओगे, लेकिन मेरे ऑडियो के साथ अगर वीडियो भी तुम्हारे दिमाग में जाएगा तो कुछ पिक्चर रहेगी अंदर तुम्हारे, जो लंबे समय तक तुमको याद रहेगी. आपके सुधरने का चांस ज्यादा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो वन इज आई हैव टू वर्क विद माई पोस्चर. सेकेंड, आई हैव टू वर्क विद माई हैंड मूवमेंट्स. जब मैं अपने शरीर पर काम करता हूं, अपनी वर्बल कम्युनिकेशन पर काम करता हूं, तो मैं कैसा कम्युनिकेटर बन रहा हूं? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर. What sort of communicator? Loudly बोलिए. और loudly बोलिए. So first I need to give practice to my vocal organs and then I need to give practice to my limbs. पहले मैंने किसको प्रैक्टिस कराया? vocal organs. फिर मैंने किसको प्रैक्टिस कराया? limbs. ये मेरे limbs हैं, ये मेरे limbs हैं. अगर मेरे हाथ काट दी जाए, मेरी टांगें काट दी जाए, तब भी मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि ये मेरे बॉडी की एक्सटेंशन है. इसके ये वाला हिस्सा और यहां तक का हिस्सा इंपॉर्टेंट है. ये सब आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है. यस और नो? मैं अभी तुम्हारे दोनों हाथ अलग कर दूं, जीवित रहोगे, मरोगे नहीं, नॉट टू वरी एट ऑल. लेकिन ये मुंडी उड़ गया तो खत्म. सो व्हेन आई से वर्बल कम्युनिकेशन, आई हैव टू वर्क ऑन माय vocal organs, and when I say non-verbal communication, I have to work on my limbs. मेरी टांगों पे मुझे काम करना होगा, मेरे हाथों पे मुझे काम करना होगा. हाउ डू आई सिट, हाउ डू आई स्टैंड, हाउ डू आई मूव माई हैंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आई ब्रिंग ऑन माई फेस, इन सब पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? काम. तो ये मेरे कितने हिस्से हो गए कम्युनिकेशन के? 2. पहला हुआ मेरा वर्बल, दूसरा हो गया नॉन वर्बल. एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ योर पावरफुल कम्युनिकेशन. दिस इज कॉल्ड योर वोकल कम्युनिकेशन. बोलिए. One more time. One more time. So first I work on my verbal communication. I am practicing hard. Then I started working on my body language also. Then I found that when I talk to people, I'm not able to bring that sort of energy which is required. Why it is missing? Because मेरी आवाज के अंदर modulation नहीं है. मेरी आवाज मेरे भीतर के जो भाव हैं उनको मेरे स्पीकर्स तक नहीं लेके जा रही है. मेरी आवाज मेरे जो लिसनर्स हैं उनके दिमाग के लिए तो सब्जेक्ट मैटर लेकर जा रही है, लेकिन दिल के लिए कुछ नहीं लेके जा रही. और दिल के लिए कब लेकर जाती है? जब आवाज के अंदर इमोशंस आती हैं. क्या होता है जब आवाज में इमोशन आती है? एंड दिस इज कॉल्ड माई वोकल कम्युनिकेशन. This is called my vocal communication. It means when I'm talking to people, I'm able to convey my mood to them. If I'm angry, my voice has to have anger. If I'm happy and cheerful, my voice has to reflect the same cheerfulness. People must get connected to me. You listen to radio jockeys, you feel good. Why? Because their voice modulation is very good. Their voice modulation is very good. वो जो बोलते हैं उसके अंदर जो भावना होती है वो उनकी आवाज के साथ
आप तक पहुंचती है तो आपको सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है. So one, I have to work on my verbal. Second, I have to work on my non-verbal. And third, I have to work on my vocal communication. In order to work on my vocal communication, I have to practice drama. What have I to practice? ड्रामा. उसमें हमने बोला वोकल ऑर्गन का प्रैक्टिस करना है, इसमें हमने बोला कि बॉडी के लिम्स का प्रैक्टिस करना है. अब इसमें भी वोकल ऑर्गन का ही प्रैक्टिस है, लेकिन उनको प्रैक्टिस करते हुए मुझे क्या करना है? ड्रामा करना है. व्हाट हैव आई टू डू? ड्रामा. लाइक एज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, सो व्हाट एम आई डूइंग? ड्रामा. दिस इज. अभी मैं घर में कोई ऐसे बात नहीं करूंगा ना, घर में तो मैं अपनी बीवी से, बच्चों से अच्छे से बोलूंगा. अभी तुम्हारे आगे मैं क्या कर रहा हूं? ड्रामा. व्हाई? Because I want you got to listen to me. I want you should remain attentive. Because research क्या बोलता है? The total attention span of a person is less than 1 minute. आज की डेट में आदमी का जो attention span है वो hardly 1 minute है. Within 1 minute उसका attention span disturb हो जाता है. That's why people don't watch long videos today. They are watching reels. What are they watching? Reels. उनको 1 मिनट के अंदर चाहत होती कुछ और देखो, फिर कुछ और देखो. तो अब अगर आई वॉन्ट कि माई ऑडियंस हैज टू लिसन टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई नीड टू मेक माई सेल्फ इंटरेस्टिंग. एंड इफ आई हैव टू मेक माई सेल्फ इंटरेस्टिंग, आई हैव टू यूज गुड वर्बल कम्युनिकेशन, गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट आई नीड टू ऐड लॉट ऑफ ड्रामा. एंड दैट ड्रामा इज बेसिकली माई वोकल कम्युनिकेशन. वो मेरा कौन सा हिस्सा है? वोकल कम्युनिकेशन. आर यू मीटिंग गाइस? यस और नो? तो हमने पढ़ा कि पर्सनालिटी एक इनर प्रोसेस है, इनर डेवलपमेंट होती है. फिर हमने पढ़ा कि इनर डेवलपमेंट के लिए हमको आज सबसे पहले जो पकड़ना है वो हमने किसको पकड़ना है? कम्युनिकेशन को पकड़ना है. फिर हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के अंदर कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं. पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? चौथा कौन सा? वर्बल के लिए हमको क्या करना है? वोकल ऑर्गन्स का प्रैक्टिस करना है. नॉन वर्बल के लिए हमको क्या करना है? और वोकल के लिए हमको क्या करना है? ड्रामा. ड्रामा यानी कि अपनी आवाज के अंदर हमको क्या लेकर आना है? इमोशंस, मूड्स. और वो कब आती हैं? जब हम अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करते हैं. अग्री डिसअग्री? अब इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ये एक हिस्सा हो गया. अब अगले हिस्से पे आते हैं. योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, योर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, योर क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन. आप किस तरह के रिश्ते एंजॉय करेंगे आपका जीवन साथी के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, आपका टीचर्स के साथ, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ. रिश्ता सुंदर होगा या नहीं होगा ये सब डिपेंड करेगा एक चीज़ पर, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल. क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल. अब ये सवाल पैदा होगा कि भाई कम्युनिकेशन स्किल से रिश्तों का क्या लेना था? मियाँ बीवी में बनेंगी ही तब जब क्या अच्छा होगा? माँ बाप और बच्चों में बनेंगी ही तब जब क्या अच्छा होगा? टीचर्स और स्टूडेंट्स में बनेंगी ही अच्छी तब जब क्या अच्छा होगा? कम्युनिकेशन स्किल. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि ऐसे कैसे? देखिए, 2 लोग इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. 2 रिश्ते सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. 3 बोल देते हैं चलो. एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन, एक हस्बैंड और वाइफ, और तीसरा टीचर्स और स्टूडेंट. पेरेंट्स की शिकायत है बच्चे समझते नहीं, बच्चों की शिकायत है माँ बाप समझते नहीं, हस्बैंड की शिकायत है बीवी सुनती नहीं है, बीवी की शिकायत है हस्बैंड समझता नहीं है, टीचर्स का दुख है कि नलायक बच्चे कुछ करते नहीं, और बच्चों का दुख है कि टीचर नलायक है. और तीनों रिश्ते सबसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, और तीनों में क्या चल रहा है? दुख चल रहा है. ये तीनों रिश्तों में ही दुख चल रहा है. और ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके जीवन को या तो बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं. और इनको सुंदर बनाने का एक ही तरीका कम्युनिकेशन स्किल, और कोई तरीका नहीं है. वंस इट हैपन द न्यूली मैरिड कपल एक घर में शिफ्ट हुए, वहाँ रहने लगे. नई नई शादी हुई थी. दोनों ने कस्में वादे किए कि हम दोनों प्यार से जीवन को बिताएंगे और अच्छे से रहेंगे, मिल के रहेंगे. तू मेरे में अंडरस्टैंडिंग करना, मैं तेरे में अंडरस्टैंडिंग करूँगी. वील हैव अंडरस्टैंडिंग, राइट? लेकिन बात बनी नहीं. कुछ ही दिनों में उनके झगड़े शुरू हो गए. एंड दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर एवरी डे. एंड दे वर वेरी अपसेट कि यार क्या किया जाए, रोज झगड़ा होता है. एंड उससे ज़्यादा परेशानी ये थी कि उनके सामने एक कपल और रहता था, वो कभी नहीं लड़ते थे. दे सेड कि साला हमारा तो रोज लड़ाई होता है, इनका कभी कोई लड़ाई ही नहीं होता. दे सेड व्हाट टू डू.
उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इन्हीं के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि तुम लोग कभी नहीं लड़ते और हमारी लड़ाई होती है। सो वन फाइन इवनिंग दे वेंट टू देयर होम एंड दे सेट ओवर देयर। उन्होंने चाय वाय पिया और फिर बोला देखिए किसी काम से आपके पास आए, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे पूछे। उन्होंने कहा बिल्कुल, ऐसी क्या बात है, आप पूछिए। तो उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया कि देखो हमारा भी शादी हुआ लेकिन हमें रोज़ झगड़ा होता है, हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें झगड़ा ना हो, और फिर हम आपको देखते तो बड़े हैरान होते हैं, कभी आपको लड़ते नहीं देखा। तो हस्बैंड ने बोला बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोला सिंपल है? बोला यस। बोला बस एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको, अगर वो कर लोगे तो आप भी हमारी तरह से सुखी विवाहित जीवन जियोगे। दे सेड बताइए, वी आर रेडी फॉर इट। उन्होंने बोला देखो हमने जब हमारा शादी हुआ तो हमने कुछ दिनों के बाद ये तय कर लिया कि मैं हस्बैंड जो भी घर के बड़े फैसले मैं लूँगा, उसमें मेरी बीवी इंटरफेयर नहीं करेगी, और मेरी बीवी जितने भी घर के छोटे छोटे फैसले हैं वो बीवी लेगी। तो बस इतना सा काम है, उसके बाद हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि इट्स वेरी गुड, चलो यही करते हैं। दे केम बैक होम, दोनों बैठे और बोला कि देखो आज से हम भी इन्हीं का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जो भी बड़े फैसले हैं वो तुम लेना और जो भी छोटे फैसले हैं वो मैं लूँगी। उनका जीवन शुरू हुआ, लेकिन अगले दिन से फिर लड़ाई, फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, बड़ा कोशिश किया, फिर झगड़ा। अब उन्होंने बोला क्या करें, उन्होंने बोला चलो फिर चलते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हुई हमसे फॉलो करने में। तो दोबारा गए उनके घर, तो उन्होंने बताया कि देखो आपने जो बताया था वो हमने किया लेकिन काम नहीं कर रहा ये फार्मूला। उन्होंने बोला नहीं हो ही नहीं सकता, ये फार्मूला तो 100% काम करता है। तो बोला थोड़ा डिटेल में बताओ, मतलब क्या? उन्होंने बोला देखो जितने भी छोटे फैसले हैं वो मेरी बीवी लेती है और जितने भी बड़े फैसले हैं वो मैं लेता हूँ। जैसे कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन सी ट्यूशन में जाएंगे, हम किस रिश्तेदार के घर जाएंगे, किसके घर नहीं जाएंगे, किसको क्या देना, किसको नहीं देना, ये सारे छोटे फैसले मेरी बीवी लेती है। और बड़े फैसले जैसे भारत को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें हमारे प्रेसिडेंट को अमेरिका वाले प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए नहीं, ये फैसले मैं लेता हूँ। बोला तो हमारा कोई भी झगड़ा नहीं होता। Did you understand? So communication skills are very important in order to have good relationships. और जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ा रोल होता है एक रस का, जिसका प्रयोग अभी अभी मैंने किया, उसको बोला जाता है हास्य रस। बोलिए जरा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। This is called sense of humor. This is called sense of humor. You as an individual, आपको अपने भीतर इस रस को भी पैदा करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हंसा कैसे जाता है, हंसाया कैसे जाता है, किसी की खिंचाई कैसे की जाती है, कोई आपकी जब खिंचाई कर रहा है तो उसको एंजॉय कैसे किया जाता है। जब इस तरह से आप करते हैं तो आपके भीतर क्या पैदा होता है? सेंस ऑफ ह्यूमर। आजकल लोगों की लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। थोड़ा सा किसी ने मजाक किया, बता रहा हूँ तेरे को मेरे साथ दोबारा ऐसे बात मत करिए, समझ गया ना मैं। अब वो he didn't say much but he is offended. The second person is feeling offended. Why is he feeling offended? Because ego है, अपनी इमेज बहुत छोटी है, उसके कुछ कहने से उसको बुरा लग गया। तुमको किसी ने बोला गधा, तुमको बुरा लग गया कि साला मेरे को गधा बोल दिया। देखो तुमको किसी ने गधा बोला, थोड़ा लेफ्ट देखो, राइट देखो, किसी ने नहीं सुना, तुम ही हो बस, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा थोड़ा और गहरे से जांचना है, दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे मुड़ के देखो, पूंछ भी नहीं है तुम्हारे, फिर तुम गधे हो क्या? नहीं, उसका साला प्रॉब्लम है। Why are you feeling bad? Do you have a doubt that you're a donkey? You don't have a doubt, ना? So why you feel bad? वो पागल है, उसका eyesight weak है, enjoy it. उसका क्या वीक है? आईसाइट उसको देख नहीं रहा है कि मैं दोनों टांगों पे खड़ा हूं, गधा तो 4 पे खड़ा होता है और ये पूंछ भी नहीं है मेरा। बट तुमको क्या लगा, मेरे को गधा कैसे बोल दिया तूने? क्या तू साला गधा था? जब तू वो था ही नहीं तो तुझे बुरा क्यों लगा? A lady goes to a counselor and says, sir, I need your counseling. He says, tell me, what can I do for you? She says that every time my husband makes me feel low, मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा छोटा महसूस कराते हैं। He gives me complexes. He gives me complexes. So the counselor says, lady, could you tell me, how does your husband give you complexes? Does he give you gift pack or does he send it by courier? Lady feels very bad कि what is this? मैं आपको बोल रही हूँ मेरा हस्बैंड मेरे को कॉम्प्लेक्सेस देता है, छोटा फील कराता है, आप पूछ रहे हो कोरियर से भेजता है या गिफ्ट पैक देता है?
Counselor says, no, I really want to understand. How does he give it to you? Please, मुझे को थोड़ा समझाओ. So lady बोलती है, देखो, हम लोग घर में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग रूम में उनके दोस्त आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं और मैंने कोई बात बोली और उसमें मेरा हस्बैंड सबके सामने बोल देता बेवकूफ़ कहीं की, तो मुझे बुरा लग जाता है कि आई फील लो. काउंसलर सेज, ओ रियली सीरियस प्रॉब्लम. He says, lady, tell me, imagine you're sitting in the drawing room. Your friends are sitting, your husband's friends are sitting, you make a tea and you all are enjoying tea. And you say something and in between your husband says, aeroplane kahin ki. How do you feel? She says, what? He says, तुम्हारा husband तुमको बोलता है aeroplane कहीं की. How do you feel? She says, I won't feel anything, I will laugh. He says, why would you laugh? Because I know I'm not an aeroplane. Oh, that is a problem. You think you are an idiot? जब तुमको उसने बोला एरोप्लेन तुमको बुरा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि तुमको पता है तुम एरोप्लेन. उसने तुमको इडियट बोला तो बुरा क्यों लगा? Are you understanding what I'm trying to say? Do not take the words literally of what other people are saying. Many times we say something out of mood. And many times we don't understand the seriousness of the situation and we say it. Later on you may talk to each other that these words make me feel offended. But at that time, let it pass. Let it pass. How is it going to be possible? जब आप अपनी communication में कौन से रस को पैदा करेंगे? हास्य रस. बहुत खूबसूरत रस है. जिसके जीवन में होगा वो सुखी होगा, जिसके जीवन में नहीं होगा वो क्या होगा? दुखी होगा. You have to work on it. छोटे हो जो अभी स्कूल गोअर्स है, read jokes, read funny stories. When you watch Kapil Sharma show, watch it carefully and see how does this man create humor so that you can learn from him. Do not watch the program for mere sake of entertainment only. Watch everything with an idea of learning. जब भी आप किसी चीज को देखें तो आप मात्र अपने 2.5 घंटे को बर्बाद करने के लिए ना देखें कि मेरे को एंटरटेन करना है अपने आप को. देखो उसमें कुछ सीखने के लिए होगा, कोई ऐसी कला होगी जो तुम उससे उठा सकते हो, कोई ऐसा डायलॉग होगा जो तुम उसका उठा सकते हो, कोई उसका मूवमेंट होगा जो तुम उठा सकते हो, कोई उसकी हरकत होगी जो तुम सीख सकते हो. ये जब तुम करोगे तो तुम्हारा क्या सुधरेगा? कम्युनिकेशन स्किल. और जब तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा तो क्या सुधरने वाला है? तुम्हारा पर्सनैलिटी. यस और नो? अग्री डिसअग्री? तो अब कम्युनिकेशन में एक और हिस्सा कौन सा डाला तुमने? हास्य रस. तो इससे तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का भी हिसाब ठीक बैठेगा, मम्मी पापा के साथ भी बच्चों का ठीक बैठेगा, टीचर्स के साथ भी थोड़ा ठीक बैठेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गो टू स्कूल, वो बेचारी टीचर अपने घर से थकी हारी आई होती है, उसकी भी मजबूरी है नौकरी, क्योंकि जमाना ऐसा आ गया कि सबको काम करना है. यस और नो? तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब कुछ नहीं मिला तो टीचर बन जाओ. इट इज रियलिटी. If you go to the schools and colleges, 80% of the women who have become teacher, they have become teacher because they found कि अब इतना पढ़ लिए हैं तो कुछ तो करें, तो चलो क्या बन जाते हैं? टीचर. और ये दोनों प्रोफेशन ना बड़े खतरनाक है, एक टीचिंग वाला भी और एक मम्मी पापा वाला भी. सबसे इंपॉर्टेंट थे ये, सबसे इंपॉर्टेंट थे और सबसे बेड़ा गर्क इन दो का हुआ. What do you require in order to become mummy papa? Marriage. You get married, now you are legally allowed to be mummy papa without knowing कि इस आदमी का अपना पर्सनालिटी बैलेंस है, इसका इतना समझ है कि एक आइटम जब पैदा होगी इसके घर में उसको ये संभाल भी पाएगा या संभाल पाएगी या नहीं, इसकी कोई चेकिंग नहीं होती है पहले. यस और नो? ऐसा ही टीचिंग का भी है. MSc B.Ed आप क्या बन गए? टीचर. कोई चेकिंग नहीं है कि ये व्यक्ति खुद बैलेंस्ड है या नहीं है, इसका अपना पर्सनालिटी, इसका अपना करेक्टर स्ट्रांग है या नहीं है, इसके अपनी वैल्यूज़ हैं लाइफ में या नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है या नहीं है, इसका अपने प्रति मोहब्बत है या नहीं है, बच्चों से इसका लगाव है या नहीं है, क्या उस बच्चों के अंदर छुपी उस टैलेंट को देख पाता है या नहीं देख पाता है, उनके लिए कंपैशन है इसके मन में नहीं है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है वो. तो He is frustrated and that's why you'll see most of the teachers, अगर आप कभी एक सर्वे करें तो आप पाएंगे अधिकतर अध्यापक जो होते हैं उनके बच्चों से उनकी पटती नहीं है और बहुत ज़्यादा करते भी नहीं है वो. तो एक टीचर अगर एक पूरे 30 बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा है तो क्या वो अपने एक को नहीं संभाल पा रहा? अगर वो एक को नहीं संभाल पाया तो वो 30 को भी नहीं संभाल सकता. Are you understanding what I'm trying to say? Parenting and teaching, they are the most exploited areas. Why? Because in both the areas there are no checks. A person who gets married
And lady or a man who decides to be mother and father, they need to understand that when they give birth to a child, that child is a responsibility of 20 years. वो बच्चा आपकी 20 साल की जिम्मेदारी है. And if you are not ready to take that responsibility, kindly do not give birth. Because that child is ball of energy. That child is potential. He can become anything. What he requires is your understanding, your love, and your dedication and your passion for bringing that child up and making him something wonderful. वो जोश, वो उत्साह, वो मोहब्बत उस बच्चे से अगर माँ बाप की नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर. Are you getting it or not? Sometimes we see parents are expecting too much from their children at a very young age. बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें लगा ली होती हैं. Let them grow. Sometimes parents come and their children are just 5 year, 6 year. Some mothers make a call and they say, sir, आपके यहाँ बच्चों का personality development होता है. We say, yes ma'am, हम लोग कराते हैं. तो सर मेरे को अपने बच्चे को करवाना है. एंड आई आस्क कि मैम कौन से स्टैंडर्ड में आपका बच्चा पढ़ रहा है? तो दे टेल कि सर अभी 5 साल का है. तो मैंने कहा लेट हो गए, जब कंसीव किया था तब आना था, अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो डेवलप ही नहीं होगा. 5 साल का बच्चा है, अभी उसको पर्सनैलिटी शब्द का मीनिंग भी मालूम नहीं होगा. वो अभी खुद को समझने में लगा हुआ है कि वो है क्या. और आप उसकी किस पे काम करने जा रहे हो? अरे उसको मोहब्बत चाहिए तेरी. उसके साथ बैठ, रात को जब सोएगी उसको अपने साथ सुला, उसके साथ एक स्टोरी बुक उठा, एंजॉय कर उसकी तरह, पढ़ उसको, फिर उसको सुना, फिर वो पढ़ेगा तेरे को सुनाएगा. उसके चुटकुले सुन, तू उसको चुटकुले सुना, उसकी स्टूपिड चीज़ों पे तू हंस, तेरी स्टूपिड पे वो हंसेगा. फिर देख कैसे रिश्ता सुंदर होता है. पर तुमको क्या डेवलप करना है? पर्सनैलिटी. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में तुम जाओ तो सबको बोलना चाहिए शीला का बेटा तो बहुत होशियार है. अगर उसने बोला नहीं कि शीला का बेटा बहुत होशियार है, मेरा तो बेइज्जती हो गया. अब बच्चा तुम्हारे लिए क्या बन गया? तुम्हारी इमेज का वो चक्कर. अरे बच्चा है, उसे एंजॉय करने दो. लेट हिम एंजॉय. व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम? लेट हिम ग्रो. बाय द टाइम ही रीचेस 6-7 स्टैंडर्ड, अब उसमें परिवर्तन आना शुरू होगा. अब उसको एक्सपर्ट इंटरवेंशन चाहिए. अब आपको ना केवल माँ या बाप की तरह उसको डील करना होगा, एक्सपर्ट की तरह भी डील करना होगा. नाउ यू नीड टू टेल हिम कि समाज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसमें भी पेशेंटली उसके साथ काम कीजिए. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें इसमें हैं ऐसी ही, उनको मत बदलो, वो वैसे ही हैं. कुछ ऐसी हैं जो इसकी बहुत स्ट्रांग है, उस पर काम करो. क्योंकि स्ट्रेंथ पे अगर तुमने काम कर दिया तो वो शानदार हो जाएगा. और स्ट्रेंथ की जगह तुम उसकी वीकनेसेस को ही सुधारने में लगे रह गए तो जो उसका स्ट्रांग एरिया वो तो निखर ही नहीं पाया फिर. और आदमी एवरीबडी सिटिंग इन दिस रूम वुड एग्री विद मी कि आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हैं. कोई एक ऐसी चीज़ तुम में सब में होगी जिसमें तुमको लगता है दिस इज़ माई फोटे, ये मेरी पकड़ है, इसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ. वी हैव टू फाइंड आउट दैट इन आवर चिल्ड्रन. बट रिमेंबर, पेरेंट्स नीड टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन. समय दीजिए, गप्पे मारो उनके साथ, खेलो, मस्ती करो. चिल्ड्रन शुड नो दैट यू आर स्टूपिड सम टाइम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर आपके बच्चे को लगता है कभी कभी कि आप भी बेवकूफ़ों जैसी हरकत करते हो, बहुत अच्छी बात है. इंसान हो, कर सकते हो. ऑल चिल्ड्रन सिटिंग हियर, डू यू एग्री दैट योर पेरेंट्स आर गॉड? यस और नो? लाउडली बोलिए, योर पेरेंट्स आर योर गॉड और नॉट? जोर से बोलो भाई, ऐसे घबरा के नहीं. तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान हैं या नहीं है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए. नो, इंसान है बेचारे. क्या है बेटा? इंसान है. भगवान तो परफेक्ट होता है, भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती. माँ बाप इंसान है, उनसे गलती हो सकती है. सो इफ यू कैन बी रॉन्ग एंड फॉर योर मिस्टेक योर पेरेंट्स आर पार्डनिंग यू, फॉरगिविंग यू, यू शुड ऑल्सो फॉरगिव योर पेरेंट्स फॉर देयर मिस्टेक्स, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स. जब वो आपको पाल रहे हैं, कभी कभी उनसे गुस्से में कुछ गलत भी हो जाएगा. नो, डोंट फील बैड अबाउट इट. इंजॉय करो. तुमको मालूम था तुम्हारा गलती नहीं था, तुम्हारी माँ ने एक चपत लगा दिया, तो देखो, फील करो गाल कितना गर्म हुआ. फिर दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस देखो कि ये ठंडा है और ये वाला गर्म है. मजा आएगा उसको. ठीक है? फिर महसूस करो कि जब तुमको मार पड़ी, तुम रोए, उसका तुमको थोड़ा वेटलेसनेस फील हुआ, थोड़ा हल्का महसूस करोगे. और फिर जब तुम सोए मार खाने के बाद, और जब तुम दोबारा उठे, रिलैक्स थे. ये थेरेपी होती है. आजकल माँ बाप नहीं देते बच्चों को, इसलिए बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे. हमको मिली है, हमको मालूम है, बहुत मजा आता था. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मार पड़ती थी, हम रोते थे, फिर सो जाते थे. सोने का उठते तो कहते वाह गुड,
बहुत डिफरेंट फीलिंग आता था. सो इट्स नॉट बैड. हु आर पेरेंट्स? ह्यूमन बींग्स. उनके भी अपने मूड्स और टेंट्रम्स होते हैं. यस और नो? अभी मान लो तुम ठीक मूड में थे, पापा को ऑफिस में बॉस से गाली पड़ा या बिजनेस में कोई लॉस हो गया, वो घर आए, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे पापा एनर्जी के साथ आए, वो थोड़ा नहीं थे एनर्जी में और तुमने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोल दिया. डोंट फील बैड, इट्स ओके, हो गया, थोड़ी देर तुमको बुरा लगा, नो प्रॉब्लम, बट डोंट कैरी टू फार. यू नीड टू अंडरस्टैंड ही टू इज अ ह्यूमन बीइंग. जैसे भावनाएं तुमको प्रभावित करती हैं, तुम्हारे माँ बाप को भी प्रभावित. और यही बात माँ बाप को भी समझनी कि जैसे मैं भावनाओं से प्रभावित होता हूं, मेरे बच्चे भी भावनाओं से प्रभावित होते हैं. तो वो कभी लो फील करेंगे, कभी बड़ा फील करेंगे, बट हम एक कोऑर्डिनेशन बनाकर बात करेंगे तो हमारा रिश्ता कैसे होगा? खूबसूरत होगा. For example, my daughter has recently taken the exams of 10th standard. She is good in studies, very studious. So she wanted to go for UPSC, wants to go for UPSC. Now I, with my own knowledge, thought कि humanity is going to be good subject to her. And we discussed in advance कि ऐसा करियो तो 10th के बाद humanities ले लियो and start working for UPSC. बाकी tough subject में क्यों घुसना? And she agreed with me that it's okay, I'll take humanities. अब उसने humanities ले लिया, but when she started studying, उसको boring लगने लग गया. She found कि इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है. And every teacher used to come, they said, जानवी तुमने humanities क्यों लिया बेटा? तुम तो होशियार थे, तुमको तो साइंस लेना चाहिए था. And she said, सर मेरा ये गोल है. They said, so what? इससे भी आप उसका अचीव कर सकते थे. Now she got upset कि अब now she is in boarding. She made a call कि डैड क्या ये बदली हो सकता है? I said, नहीं नहीं यार ठीक है, ये तेरे लिए humanities मस्त है, बढ़िया, क्यों टेंशन ले रही है, कम पढ़ना पड़ेगा और अच्छा है. Now she didn't argue with me, but again she wrote an email to me. She said if something can be done. Now I understood one thing कि इसको गड़बड़ हो रहा है, ये humanities को लेना नहीं चाहती है. So recently we went on a PTM to meet her. मैं अपने माइंड में पूरा तैयार होकर गया था कि मैंने इसको मना लेना ह्यूमैनिटीज़ के लिए. ये मेरी प्लानिंग चल रही है क्योंकि पेरेंट्स भी मैनिपुलेटिव होते हैं. यस और नो? और मैनिपुलेटिव होने में कोई बुराई नहीं है. कभी कभी समय पर आपको मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं. सो आई एम क्लियर इन माई माइंड दैट आई विल टॉक इन सच अ वे दैट आई विल कन्विंस हर दैट यू विल टेक ह्यूमैनिटीज. एंड शी विद इन हरसेल्फ न्यू कि मेरा बाप मेरे को मना लेगा. So we said, I said, now tell me what is the issue. She said, this is the issue. I said, तेरा problem क्या? She said, ये problem. मैंने कहा देख बेटा ऐसे 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 सारा कुछ समझाता रहा. But later on I found कि वो बोल तो नहीं पा रही है. She is not able to give me logics, but she is yet not convinced by what I am saying. Okay? So then I said, now talk openly because I will not impose. Tell me what is your goal. She said, goal is that. I said, okay, goal is that. So why are you planning to change this stream? Will it not be convenient? She said, it's not like that. अगर आप recent data को उठा के देखें तो ज़्यादातर बच्चा साइंस का ही select होता है. And it is true that majority of the people who get selected in UPSC, they are from IT background or science background. Second number पे humanities होते हैं. I said, but it is tough. She said, but I am good in it. मैं कर लूँगी. I said, what is the problem with history? She said, वो past है, उसको मैं हमेशा जब पढ़ती हूँ तो last moment में पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं उसको भुला भी देती हूँ क्योंकि याद रखने लायक नहीं है. I said, okay. So I said, shall we take some expert advice? She said, you talk to my teachers who are previously taught me. So I went to 3-4 teachers and they all recommended कि यार नहीं इसको आपको humanities नहीं देना चाहिए, इसके लिए तो history ज़्यादा अच्छा है. And उसके बाद भी ये सारी fields open रहती हैं. So I listened and I found कि मेरे चाहने के बावजूद भी इसका जो inclination है वो science पे ही है. So then I came out and I sat with her. I said, leave everything. Leave what I am saying. Leave what your teachers are saying. You sit for some time, talk to yourself and come to me and then finally tell me that what your intuition says कि तेरे को क्या करना है. Okay, I'll agree with that without any arguments. She sat for some time and she said, Papa, science ही लेनी है. I said, done, no problem. Then I wrote an application. I went to the office and I gave them application. I said, इसका stream change कर दो. और उसका क्या change हुआ? Stream change हो गया. And then I found she was happy. वो खुश थी. तो वो जो उसका weight था उसके शरीर पे बोझ था कि मेरा बापू मानेगा नहीं, मुझे मना लेगा और उसको एक डर था, उससे उसमें क्या चला गया? स्ट्रेस चला गया. ओके और लाइफ सिर्फ गोल अचीव करने में नहीं होती है, लाइफ इंजॉय भी करनी होती है. और इंजॉयमेंट कब होती है? जब आपके रिलेशंस कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं. और जब हम कोई फैसला लेते हैं, खुद चूज करते हैं
उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है, या जो हमारे माँ बाप हमसे करवाते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी बड़ी होती है, जो हम खुद तय करते हैं? Are you understanding it? So now it is her decision to go for it. Now it will be her responsibility to mature this decision also. Are you understanding guys what I am trying to say? अब ये possible क्या है, कैसे होता है? Possible इसलिए क्योंकि हमारे बीच में क्या है? संवाद है, communication है. We have said that if there is something in my mind, I'll talk to you. If there is something in your mind, you talk to me. I need to know that she is my daughter, yes, but at the same time she is an individual also. वो मेरी बेटी है, ये सच्चाई है, लेकिन एक समय पर वो एक अपने आप में एक इंडिविजुअल भी है, तो उसकी कुछ अपनी फीलिंग्स भी पैदा हो रही होंगी, कुछ उसकी अपनी समझ भी होगी, कुछ मुझसे डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, मुझे उन सबको रिगार्ड देना पड़ेगा. इफ आई वांट दैट शी हैज टू रिगार्ड मी, एट द सेम टाइम आई टू हैव टू गिव रिगार्ड्स टू हर, फिर चाहे वो मेरी बेटी है चाहे कोई और है. अग्री डिसएग्री? सो कम्युनिकेशन का ये रूल नंबर 2 होता है कि आपके बीच में हमेशा एक चीज रहनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? वार्तालाप, संवाद. आप एवर एनी इशू talk to each other. When you're talking to each other, always remember we all are human beings. Whether he is my dad or she is my mother or a son or a daughter, हम सब इंसान हैं और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं. So if anybody said something later on it came to prove wrong, no problem, forgive them. उनसे हो गया गलती. We can't carry those burden of mistakes with us all the time. Agree, disagree, guys? And then comes very important aspect of communication. यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? All the young brigade, getting it or not? क्योंकि तुम लोग अभी बहुत छोटे हो सकता कुछ बातें भारी हों तो बाउंसर हो जाएं तुम्हारे लिए, बट आई एम श्योर कि तुम लोग हमसे ज़्यादा चेंट हो, तो तुम लोग समझ जाओगे इस चीज़ को, है ना? हाँ. यू सेइंग समथिंग? चलिए बताइए, तुमसे पूछता हूँ, तुम बड़े हो या तुम्हारी मम्मी बड़ी हैं? मम्मी बड़े हैं. और क्या तुम दोनों एक लेवल पे भी हो? अच्छा, देखो एक जगह पे तुम दोनों एक लेवल पे हो. नहीं, यहाँ पे नहीं, वैसे भी एक लेवल पे हो. देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बाप बनता है या कोई स्त्री जब माँ बनती है तो वो कब बनती है? जब बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई. तो दोनों की उम्र क्या हुई? सेम उम्र हो गई ना. एक माँ के नाते एक माँ और जो उसका पहला औलाद है वो बराबर है, क्योंकि उसी दिन तो माँ बनी, पीछे का तो कोई एक्सपीरियंस उसके पास भी नहीं है. और ये भी अभी आइटम नया नया आया है, इसके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है. यस और नो? सो एक जगह पे दोनों सेम होते हैं. अग्री, डिसएग्री? एंड पेरेंट्स शुड नेवर फील दैट हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस विच चिल्ड्रन ब्रिंग इनटू देयर लाइफ. जब वो पैदा होते हैं और तुम्हारे घर का जो पूरा ऑरा बदल जाता है, वो जो एक चेयरफुलनेस घर पे आती है, उसका कर्जा हमेशा मान के चलो. नो चाइल्ड इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी. यू आर नॉट द ऑनर ऑफ योर चिल्ड्रन. दे आर थ्रू यू बट दे आर नॉट योर्स. बीइंग अ पेरेंट आई एम सेइंग कि बच्चा आपके द्वारा है, आपका नहीं है. ही इज थ्रू यू. यू आर द कस्टोडियन. So your job is to be a good custodian, and good custodian is one who gives liberty to the child, one who develops him in such a way that he becomes responsible. It is the duty of everybody sitting in this room, whoever are parents and children also. जीवन में एक चीज सबसे आवश्यक होती है और वो क्या होता है? जिम्मेदार बनना. क्या होता है? Be responsible. Today you all are sitting here, you are student. आपकी जिम्मेदारी है, you should be a good student. You all have got this beautiful vehicle called body. तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको मस्त रखो. Don't feed it with the wrong stuff. Don't abuse it. इस शरीर को बनाओ, सजा के रखो इसको, एकदम बढ़िया रखो इसको. तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी को तो कैरी करोगे तुम आगे. यस और नो? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो जीवन है तुम्हारा, इसके जो 30 पहले साल हैं, 1 साल से लेके 30 साल, इसमें इतने शानदार बन जाओ कि आने वाले समय में तुमको सब मोहब्बत करो, तुम खुद से मोहब्बत करो. क्योंकि ये 30 तक एनर्जी ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है. You move like this, your energy goes this, and then it starts coming like this. So till 30 you will be like this, and then it will start going like this. So till 30 you have to work on yourself in such a way कि एकदम हर चीज पे काम कीजिए. Love your body, love your mind, love yourself.
Be responsible. And parents, it is your responsibility that if you have given birth to a child, उसके साथ फिर लगो आप, फिर बाकी काम छोड़ दीजिए. ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इनको छोड़कर बाकी सबको वैल्यू दी है. स्टिल देयर आर फैमिलीज जो इस पे काम करते हैं. देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु हैव देयर चिल्ड्रन. इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ओके, एंड यू आर इन हरी. तो आपने फटाफट अपना बैग पैक किया और आपने अपना सामान रखा. घर में आपकी काम वाली है, आपने काम वाली को बोला कि घर को पूरा अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर लेना, बाद में लॉक लगा के चले जाना, और आप फटाफट अपना बैग उठा के अपनी गाड़ी से निकल गए. और जैसे आप निकलकर 2 किलोमीटर आगे गए, आपको याद आया कि आपका वॉलेट छूट गया और वो टेबल के ऊपर ही पड़ा और उसमें 20-25 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं. और घर में कौन है? इमीडिएट तुम गाड़ी मोड़ोगे, वापस दौड़ के आओगे कि इससे पहले मेरा पर्स गायब हो जाए, इसको बचाऊं मैं. यस और नो? क्यों बचाया तुमने पर्स? क्योंकि क्या था? इंपॉर्टेंट था भाई. 20-25 हज़ार रुपये वैल्यू रखते हैं. यस और नो? और आज हम जिसको पैदा करते हैं उसको मेड के हवाले छोड़ के चले जाते हैं. सोचिए जरा, उसकी वैल्यू 25 हज़ार भी नहीं है, वो बेचारा 25 हज़ार का भी नहीं है. सोच के देखो. एंड वी आर एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े लिखे लोग हैं. वी हैव टू थिंक. हमको लाइफ को रीमॉडल करने की आवश्यकता है. It's my opinion. People may disagree, no problem. But it's my opinion that we have to redesign our life. We have to remodel our life. Something which is important has to be given priority. Somewhere our priorities are not properly set, because of which this whole mess and chaos is happening. If we are able to set our priorities proper, life is going to be wonderful. So we have to be very careful, and especially about children, I believe, because they are an assets. They are potential. They are not ready-made. They are not original. They are not natural. आप natural तो ये चमड़ी है बस, ये बड़ी होगी, शरीर बढ़ेगा और मरेगा, ये natural है. बाकी कुछ भी natural नहीं है. बाकी सब बनाया जाता है. उसके विचार बनाए जाते हैं, उसकी आदतें बनाई जाती हैं, उसके संस्कार बनाए जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बनाया जाता है या तोड़ा जाता है, जो भी है ये सब बनाया जाएगा. बाकी सब नेचुरल है. So it's our job that we should work very dedicatedly on that. और उसमें फिर रिपीट करते हैं, वापस आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी कम्युनिकेशन. अब एक रूल तुमको कम्युनिकेशन का देता हूं, विच यू मस्ट कीप विद यू ऑल द टाइम फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एंड इफ यू कीप दिस रूल विद यू ऑल द टाइम फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी स्टुपेंडस. आई मीन वंडरफुल. बहुत शानदार रिश्ते हो जाएंगे आपके. इस रूल को आप लोग लिख लीजिएगा. रूल सेज सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. लिखिए इसको, बड़ा बड़ा करके लिखिएगा इस रूल को. सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. Seek to understand, then to be understood. Seek to understand, then to be understood. Seek to understand, then to be understood. See, the problem in most of the relationship is everybody is saying कि मुझे समझो, ये मुझे नहीं समझते. जबकि कम्युनिकेशन का नियम कहता है कि आप ये चाहत रखें कि कोई आपको समझे, उससे पहले आपको उसको समझना है. ओके? योर एक्सपेक्टेशन दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड यू इज अनफेयर. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल. आई आस्क यू वन सिचुएशन आई एम गिविंग यू. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. सपोज यू हैव गॉट अ हेडेक. You came back from your office and you have a headache, so you felt I should go to the medical store and get medicine for myself. So it is raining outside, you immediately took your car and you went to a medical store and you were looking for a place to park your car. तो आपको जगह दिखाई दी जहां आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते थे. लेकिन जैसे आप वहां गाड़ी पार्क करने लगे, आपने देखा एकदम तेजी से एक लड़का गाड़ी को लेकर आया और वहां उसने लगा दिया गाड़ी. तुमको क्या आया? गुस्सा. दिल किया साले को मारूं, बट कुछ कर नहीं सकते थे, जल्दी में थे. तो तुमने दूसरी जगह जाके गाड़ी पार्क किया एंड यू केम टू द मेडिकल स्टोर. सो व्हेन यू वर एंटरिंग इनटू द मेडिकल स्टोर, देयर यू सॉ द सेम बॉय रश्ड आउट ऑफ द मेडिकल स्टोर. उसको देखकर फिर गुस्सा आया कि दिल करता यहीं पकड़ लो. सी नंबर 1, यही इमोशन है. यस और नो? सी नंबर 2, यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन and you're sitting on your seat, and opposite to your seat you find old couple sitting, and with those old couple 2 children are sitting. Age group is somewhere 5 year,
and 4 year. And they are very mischievous. They are creating disturbance. Sometimes they are pulling your trousers, sometimes they are pulling your laptop, and sometimes they are eating some and some throwing. And old couple are not saying anything to them. कुछ नहीं बोल रहे हैं. पूरी वो ट्रेन में उन्होंने गन मचा रखा है. They are not saying anything. They are disturbing you also. How do you feel? कैसे लापरवाह हैं, कुछ सिखाते क्यों नहीं? Yes or no? Agree, disagree? A 20-year-old boy is traveling by a train. You're also sitting opposite to him. And suddenly the window is opened of the train, and when the window is open, the boy looks outside and he starts shouting that, "Dad, look, trees are moving with the train. Clouds are moving with the train. सारी चीजें ट्रेन के साथ चल रही हैं." And parents are very happy listening to all this. आपको क्या लगेगा? पागल है साला. He is mad. Yes or no? अब हम सीन नंबर 1 पे वापस जाते हैं. ये हमारा पहला रिएक्शन है, एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी का सेम रिएक्शन है. यस और नो? चलिए अब हम पहले सीन पे आते हैं. तो आप जब एंटर कर रहे थे, वो लड़का बाहर गया, आपको फिर गुस्सा आया. यू वेंट इनसाइड एंड यू टोल्ड दैट भैया कि भैया एक मेडिसिन दे दो. ही सेड क्या हो गया? ही सेड सिर दर्द हो गया. कह रहा अच्छा जी, लो दवाई लो. और मेडिकल स्टोर वाला तुमसे बात करने लगा कि देखो आजकल कुछ नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो जाए. ये लड़का देखो अभी अभी आया था मेडिसिन लेने, इसका बेटा अभी जस्ट 10 साल का है और उसको कैंसर हो गया और उसको बहुत इमरजेंसी में एडमिट किया हुआ है और उसको एक लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए था जो सिर्फ हमारे पास मिलता है. बेचारा अभी लेके गया है. ये वही लड़का जिसने गाड़ी पार्क किया था, उसके बारे में तुमको ये बता रहा है. अब तुमको कैसा फील हो रहा है? यू से यार बेचारा, भगवान उसके बच्चे को बचा ले. अग्री डिसअग्री? थॉट चेंज हो गया. ओके, सीन नंबर 2 पे चलते हैं. ट्रेन वाला. ओके, बच्चे हैं, गन मचा रहे हैं, तुमको गुस्सा आ रहा था. चलो तुमने बातचीत शुरू किया उनसे और तुमको पता चला कि ये दोनों ओल्ड कपल जो हैं इन बच्चों के दादा दादी हैं. ओके, और ये जो बच्चे हैं इनके जो मम्मी पापा हैं वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं और अब ये बच्चे इन्हीं के साथ रहेंगे. तो ये वहाँ से उनको लेकर आए हैं बेचारे. अब इनके माँ बाप नहीं, ये बूढ़े ही इनको पालेंगे. अब तुम्हारा विचार कैसा है? बदल गया? तुमको दया आएगी, तुम उसको गोद में उठा के अपने पास रखोगे, बेटा आजा मेरी पेंट और खींच. यस और नो? अग्री डिसअग्री? सीन नंबर 3. ट्रेन में बैठा 20 साल का लड़का बाहर देख के बोल रहा है पापा गाड़ी के साथ पेड़ भी मूव कर रहे हैं. तुमने कहा पागल है साला. यस और नो? अब तुमने बात किया उनके साथ तो पता चला ये बच्चा बाय बर्थ अंधा था और पहली बार इसका आंखों का ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन हुआ है और पहली बार ये चीज़ों को देख रहा है. अब कैसा महसूस हो रहा है? बदल गया. अग्री डिसअग्री? सो सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. हर व्यक्ति का अपना एक परसेप्शन है, हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है. आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. पर आपकी चाहत क्या है? मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो. अरे दूसरे को समझ नादान. जब तू दूसरे को समझेगा तेरा जीवन कैसा होगा? स्ट्रांग. क्योंकि तुझे क्या बनना है? कम्युनिकेटर बनना है. और स्ट्रांग कम्युनिकेटर कौन होता है? द वन हु अंडरस्टैंड्स अदर. ही डजंट से यू अंडरस्टैंड मी, ही सेज आई विल अंडरस्टैंड द पीपल. व्हाई? बिकॉज ही लव हिमसेल्फ. ही वांट्स टू डेवलप हिमसेल्फ. एंड व्हेन यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ, नियम बोलता है सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी understood. You got to understand your parents. Parents got to understand their children. Teachers need to understand the students. Student need to understand the teacher. एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि ये बेचारा 30 बच्चों को संभाल रहा है, इसका दिमाग तो खराब होना ही होना. मेरी घर में एक माँ मेरे से दुखी है, ये 30 को संभाल रही है, बेचारी दुखी नहीं होगी क्या? उसके लिए थोड़ी दया रखो, कंपैशन रखो. अग्री डिसअग्री? यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक ही किताब को ये पिछले 12 साल से पढ़ा रही है, उसको क्या मजा आ रहा होगा? 2 + 2 4 ही हो रहा है हर बार. सोच रही है कभी 5 हो जाएगा, होता ही नहीं है. एवरी टाइम 2 + 2 = 4. इन एवरी क्लास शी इज सेइंग 1857 के विद्रोह के ये कारण थे. दीज आर द रीजंस ऑफ द 1857 रिवॉल्यूशन. Every year she is teaching same, every year she is teaching same. Will it not create little bit of frustration in her? Shall you understand it or not? तुमको लगता है ये आती अच्छे से नहीं पढ़ाती, अरे उसको तनख्वाह ठीक नहीं मिल रहा बेचारी को भी, उसका नहीं दिल कर रहा. हो जाता है ऐसा कभी कभी. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. सामने वाले को समझो, वो क्यों ऐसा कर रहा है. कहीं ना कहीं तुमको दिखाई देगा तुम्हारे भीतर उसके लिए क्या पैदा होगा? कंपैशन. एंड मोर कंपैशन यू हैव गॉट विद इन, बेटर यू बिकम, ब्यूटिफुल यू बिकम.
nice you become. And the more purification happen, better your life become. जितना भीतर से तुम डेवलप होते चले जाते हो, सुंदर होते चले जाते हो, तुम्हारा जीवन कैसा होता जाता है? खूबसूरत होता जाता है. और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कम्युनिकेशन. तुमको क्या लगता है कम्युनिकेशन मतलब हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा? नो, इट्स मोर देन दैट. इट्स मोर देन दैट. तो क्या नियम है? सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा, थोड़ा समय दो, उसके साथ बैठो. मे भी उसका वो इंटरेस्ट नहीं है, मे भी उसको जिस तरह से पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, मे भी उसकी इंक्लिनेशन किसी और चीज़ के प्रति है, कोई ऐसा एरिया है जो अभी अनटच है उसका, उस पर काम करो ना. Why are you overburdening him with your expectation? आप उसको गोल दो. This is required. माँ बाप को क्या अपने बच्चे को लक्ष्य देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए. ये सोच कि भाई जो ये चाहेगा वही ये करेगा, नो. कोई आदमी खुद कुछ नहीं करता. They are limited people only. See, there are children who are called prodigy. What do we call them? Prodigy. Prodigy child means a child who is born with a certain talent. You have not taught him, but he's born with that talent. Like when you watch this program called Dance India Dance, so you find a 5-year-old boy coming on the stage and dancing like anything. He's a prodigy child. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना. Sachin was prodigy. लता मंगेशकर was prodigy. ये पैदा ही हुए थे स्किल के साथ. So इनके लिए तो आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है. But balance of the population has to be guided. So parents, when your children are growing up, give them goals. Give them some ambitions in their life. Tell them that this is the benefit. Yes, you can give them 1, 2, 3 option. But by the time they reach 7th or 8th standard, make it sure कि उनका गोल क्या है. By the time child reaches 8th standard or 9th standard, उसको मालूम होना चाहिए उसने करना क्या जीवन में. Because from there onwards, his whole energy and all efforts are to be directed in that direction only. Otherwise, whole energy will be dissipated. अगर आपकी पूरी ऊर्जा ही बिखर गई तो आप हासिल कैसे करोगे फिर? अब ये हासिल करने के लिए किसी भी चीज को 5 से 7 साल लगते हैं. And if I want कि those 5-7 year energy has to be channelized in one direction, तो मेरे को अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा. All young boys sitting here, all young girls, children जो भी स्कूल गोअर्स हैं, ask yourself what is it which you want to be in your life. तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में, और उसको पूछो अपने आप से. जब तुम 7th, 8th, 9th, 10th तक पहुंच रहे हो, कंफर्म कर दो, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी. देन पुट ऑल योर एनर्जी इनटू दैट डायरेक्शन. Do not depend upon your parents. Even if your papa has got a good business, no problem. Do by your own and then later on be a part of your father's business. Your father should know that my son has his own identity. My daughter has her own identity. तुम्हारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए. When do parents feel happy? Tell me this thing. माँ बाप सबसे ज्यादा किस दिन खुश होते हैं? जिस दिन वो अपने बच्चों से हार जाते हैं. जिस दिन वो अपने बच्चों से हार जाते हैं. You got to defeat your father. Your father should say that my son is better than me. Your mother should say that my daughter is better than me. That day is the day of achievement for them. क्योंकि एक गुरु जब अपने शिष्य को अपने से बेटर बना देता है, तभी तो उसको अनुभूति होती है ना आनंद की. द्रोणाचार्य जब अर्जुन को देखते थे तो कैसा लगता था? अच्छा लगता था. तो माँ बाप भी तो आपके पहले टीचर है ना. तो माँ उस दिन बड़ा गुड फील करती है, या माई डॉटर इज बेटर देन मी. Father feels very good the day he says, my son is better than me in every aspect. So your job is to defeat your parents. आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने माँ बाप को हराना. Your mother should feel that yes, I was good, but my daughter is far better. Your father should feel that yes, I was good, but my son is far better. And for that you have to start early. उसके लिए आपको काम कब करना होगा? जल्दी चालू हो जाओ. You got to start early. Then only you'll be able to do it. Agree, disagree? Rule number 2. अभी एक और लिखिए कम्युनिकेशन का रूल. पहला क्या है हमारा एक नियम? सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. नाउ वी आर गिविंग यू वन मोर रूल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दिस रूल सेज, राइट इट डाउन, whenever anybody does anything, anything, he thinks he's right. Whenever anybody does anything, he thinks he is right. जब कोई भी कोई किसी कार्य को करता है वो यही सोचता है कि वो ठीक कर रहा है. Whenever anybody does anything, he thinks he is right.
जब भी कोई भी किसी चीज को करेगा वो यही सोच रहा होता है कि वो सही कर रहा है। आपके हिसाब से गलत है, उसके हिसाब से गलत नहीं है। अब आपको उसके साथ बैठकर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है जहां पर उसको समझाया जा सके कि ये गलत है। लेकिन जब उसने किया था तब उसको नहीं पता था कि ये गलत है। उस वक्त उसने किया क्योंकि उसको यही लग रहा था कि ये सही है। Whenever anybody does anything, he thinks he is right. This is the rule number 2. अब आप बोलो ये हमेशा गलत करता है, इसको अकल नहीं है, ये हमेशा गलत करता है। अरे उसको नहीं, वो उसको ठीक लग रहा है इसलिए तो कर रहा है। उसको लग ही नहीं रहा है कि वो गलत है। He is doing it because he thinks he is right. And rule number 3, write down one more. Everybody loves. Everybody loves appreciation. Everybody loves appreciation. Everybody loves appreciation. हर किसी को तारीफ अच्छी लगती है. So always appreciate. Always appreciate. Don't miss the opportunity of appreciating anybody. हर किसी को तारीफ सुन अच्छा लगता है. Are you getting it? So whenever you get an opportunity of appreciating anybody, appreciate it. आपका बच्चा है, आपका दोस्त है, आपका नोन है, उनकी तारीफ कीजिए, अच्छा लगेगा उनको. यू रिमेंबर जो बच्चे स्कूल जाते हैं और मैम को बोलते हैं मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, उनको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है, कन्फर्म है. क्योंकि जब वो कॉपी चेक करने लगेगी तो उसको याद आएगा उस दिन इसने बोला था मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इज इट योर बर्थडे टुडे एंड ही गेव मी रेड रोज ऑल्सो, चलो इसको एक नंबर फालतू. इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर, यू कांट फाइट विद इट. आप इससे लड़ाई नहीं लड़ सकते. अप्रिशिएट इट. But while appreciating, when you are doing it with your closed ones, those who matter to you, be honest. When you are doing it with others, be dishonest. तुम कंपनी में गए हो, तुम्हारा बॉस है चाहे साला नलायक है, तुमने बोलना बॉस यू आर ग्रेट. It's my privilege to work under you. I really learn lot many things, sir. I am really lucky to have a boss like you. Internally, you know he's nonsense. Yet you have to do the same thing because he's your boss. He is your boss. And you have to satisfy his ego. Have you seen Wanted movie? Very spiritual movie. बहुत आध्यात्मिक फिल्म है ये. Wanted, सलमान खान. Yes or no? बहुत आध्यात्मिक फिल्म, बहुत ज्ञान वाली मूवी है. देखो उसमें ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है. ज्ञान क्या है? विलेन देता है ज्ञान को. विलेन का एक डायलॉग है जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सिखा सकता है तुमको. विलेन बोलता है जो भी करना लेकिन मेरा ईगो हर्ट मत करना. क्या बोलता है? बहुत बड़ा ज्ञान है ये. जीवन में कभी किसी का ईगो हर्ट मत करना, क्योंकि अगर तुमने ईगो हर्ट कर दिया फिर तुम कितने भी सही हो वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि क्या डिस्टर्ब हो गई उसकी? ईगो. गेटिंग इट? तो जब हम बॉस को बोल रहे हैं बॉस यू आर ग्रेट, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी ईगो को उसको खिला रहे हैं, ईगो को मजबूत कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लग रहा है. अभी तुमने बोल दिया किसने बना दिया तुमको बॉस, अब गए तुम, अब तुमको तंग करेगा वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो वांटेड कैसी मूवी है? आध्यात्मिक नजरिया है देखने का. तुमने पता नहीं उसमें क्या देखा, मुझको ये डायलॉग पसंद आया कि वाह क्या बात बोली है, बहुत गहरा ज्ञान दिया बाबा जी ने. और विलेन है देखो, लेकिन ये डाकू लोग संत हो सकते हैं ना. वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, क्या बन गए? संत. तो वो संत हो सकते हैं तो बॉलीवुड से भी निकल सकते हैं. उम्मीद रखनी चाहिए हमको. अग्री डिसएग्री? But when you are doing appreciation of somebody who is close to you, you need to be very careful. Just imagine कीजिए, okay, married people, those who have their children. Just imagine करो, your daughter comes to you, she is just 7 years and she has made a drawing and she comes and says, Mama, how is it? What will you do? Good, very good, wow. Yes or no? ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया. लेकिन मैंने तो अभी बोला ना कि अप्रिशिएट, लेकिन ये गड़बड़ है. क्यों गड़बड़ है? अब बच्ची आई है, बना के आई है, नेचुरली बनाई वैसी होगी कीड़े मकोड़े. बच्चे शुरू में ऐसे ही बनाते हैं ना. लेकिन अब तुम बोलते क्या बनाया, तो तुमने तो उसको डिस्करेज कर दिया. यस और नो? अब उसने कुछ वैसा ही बनाया और तुमने बोला वाओ, तो तुमने फिर गड़बड़ कर दी. तो अब तुमको क्या करना चाहिए? व्हेन शी कम्स टू यू विद दिस ड्राइंग,
And she says, Mama, how is it? You say, okay, you tell me how is it. She says, no, Mama, first you tell me. No, you made it now. First I want your opinion. She'll look at it and then she'll give a very genuine, I think tree is not that fine. मेरे को लगता है ये काऊ अच्छी नहीं बनी है. You say, okay, let me show. या. देखो ये तुमने बहुत अच्छा बनाया, बट यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, इसको नेक्स्ट टाइम तुम इम्प्रूव करना. अब ये हो गया आपका genuine opinion. So let the child give his own opinion about what he has done first, and then you give your opinion. अपन लोग जल्दी में होते हैं क्योंकि हमको तारीफ करना चाहिए, तो अब बोला तो टूट पड़ो तारीफ करने के लिए, चाहे कुछ किया ही नहीं है, वो भी गड़बड़ नहीं होना है. और एकदम ये क्या बना दिया तू, क्यों कलर्स खराब करता रहता है, हैं? ये अभी लेके आए थे तूने खत्म कर दिए. अरे करने दो उसको. Two things parents should never do. Don't try to preserve the toys of your children. वो जैसी दुकान से लेके आओ, तुमको इंतजार करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी तोड़ दे. It is very good. But what parents try to do, उसका एक एक चीज शोकेश में रख देते. अरे खेलने दे उसको. अगर वो खेलेगा तो बचेगा क्या जिंदा? Tell me this thing. बच सकता है जिंदा? मतलब ही नहीं है बच जाए. नहीं बच सकता. वो टूटेगा ही टूटेगा. और तुम उसको तोड़ने दो ना, उसकी वैल्यू तो जहां तुमने खरीदी हो गया काम उसका. Because child is curious, right? He went to a showroom, he bought a helicopter because he wanted to enjoy it. So when he got a helicopter, he started flying it. He found helicopter goes like this, comes like this. Again he tried, again helicopter goes like this, comes like this. Now it is boring now because same moment. So now he wants to see कि इसके अंदर क्या है. तो उसको तो खोलना पड़ेगा. अब खोलने का तरीका या तो ऐसे मारेगा या कुछ करेगा. No problem. उसने कर लिया ना enjoy. अब उसको नहीं मजा आ रहा है. It's okay. Why do you want to build up so much attachment with the toys? But so many parents I have seen खरीद के लाएंगे फिर एक कमांड, अगर खराब हो गया ना तो फिर तू देख लियो, तुझे पता नहीं है कितने का है. उसे क्या पता 500 क्या होता है. Do you think child understand the value of 1,000 rupees? He doesn't have a money matrix. So why are you trying to put it into his brain? वो money matrix उसके brain में जाके develop होना 13-14 साल के बाद. और तुम उसे अभी पैसे की वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे हो. पता है तेरे को कितने का? 1,000 रुपए का. He doesn't understand 1,000 होता क्या. उसको तो ये आइटम जो हाथ में मिली है बस ये अंडरस्टैंड है कि इट इज अ हेलीकॉप्टर, एंड यू आर ट्राइंग टू टीच हिम वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज. इट्स टू अर्ली. लेट हिम बी व्हेन ही इज 12-15, देन यू टेल हिम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी. फिर आप उसे पैसे को सिखाओ, क्योंकि पैसा उसके जीवन का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है. फिर उसको सिखाओ पैसे का वैल्यू. बट बिफोर दैट, for him toy is just a toy. He is going to be bored very soon and after that he is going to break it. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के सबसे बढ़िया खिलौने उनके पेट्स होते हैं. Why? Because pets अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. दे कैन डू एनीथिंग एनी टाइम. अगर आपके घर में एक कुत्ता है, आपके बच्चे के साथ खेल रहा है, तो वो कुत्ता उसका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो कभी भी कुछ भी करता है. सेम मूवमेंट्स नहीं है, वो अलग अलग मूवमेंट्स करता है. बट जो आपके स्टेशनरी टॉयज होते हैं, मशीन्स होती हैं, इनकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है. दे मेक यू बोर आफ्टर सम टाइम. हाउ मच एक्सपेंसिव टॉय यू ब्रिंग, आफ्टर सम टाइम यू विल बी फेड अप विद दिस. Are you understanding it or not? So what are the three main rules of communication? First is seek to understand, then to be understood. What is the second? Whenever anybody does anything, he thinks he is doing right. And what is the third? We all love appreciation. हम सबको क्या अच्छा लगता है? तारीफ. तो हमको तारीफ करनी चाहिए. We should appreciate. And if nobody appreciates you, you appreciate yourself. कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, टेंशन नहीं लेने का. सुबह उठने का, शीशे के आगे खड़े होने का, बोलना क्या आइटम बनाऊं मैं. Say like this to yourself. Feel happy that I am good. बोलते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's good. Start your day with a good statement for yourself. And when you wake up, you should say, I'm good. I'm the best. I'm nice. I'm handsome. I'm beautiful. I'm smart. And parallelly work on yourself. Parallelly work on yourself, because change comes by doing things. Change comes by doing things. You are not original. All of you sitting in this room, don't think you're original. Don't think you are what you are now. You can be better than this. You can be better than this. आप ओरिजिनल हो ही नहीं, कभी हो भी नहीं पाओगे. जिस दिन तुम मरने लगोगे ना, तब भी तुमको एहसास होगा, ओहो ये वाला तो मैं हूं ही नहीं. इसी वजह से तुमको दोबारा आना है फिर, क्योंकि दोबारा खोज चालू होगी तुम्हारी, मैं हूं कौन. Are you understanding it or not? So every time you are evolving, every time you are
evolving. You are not stationary. What I am today was not 10 years ago. What I will be after 5 years is not what I am today. जो मैं आज हूँ, आज से 10 साल पहले मैं नहीं था, और जो मैं आज से 5 साल बाद होऊंगा वो भी मैं अभी नहीं हूँ. 5 साल बाद मैं कोई और हूँ, और होना भी चाहिए. इफ यू एवर गेट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समबडी कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल वैसा है, गाली दिया उसने तुमको. तुमको बदलना चाहिए था. ही शुड हैव सेड कि यार तू तो बदल गया. इट शुड हैपन विद यू. When somebody meets you every 3 months, he should say that you have changed. It means you are growing. But if he says you have not changed, it means you are stationary. And if there is anything which is stationary, it starts stinking very soon. खड़े पानी में बदबू आती है, बहता हुआ पानी ताजा होता है. Agree, disagree? So आप खड़े होना चाहते हो या बहते चाहते हो? बहते रहिए. और उसके लिए क्या important है? Work on your personality. Work on your personality. So again, let's recap before we go further. We said we have to work on our personality. Why? Because personality is a personal asset. What is personality? Personal asset. हमारी जायदाद है ये, हमारी पूंजी है. And we said when we work on personality, there are 2 dimensions. One dimension is inner dimension, one is outer dimension. When we work on the outer dimension of personality, it is called grooming. It is called grooming. You need few bucks in your pocket, go to a showroom, get a nice dress, look for a right combination of the color, go to a barber shop, get a haircut, little massage on your face, you are groomed. Yes or no? But development is a long process. Why development is a long process? Because it is inside a process. Both are required, but development is more important. Why? Because it is an inside out process. When we work within, automatically our outside becomes better. Agree, disagree? Then we understood that in market when we go to buy 2 kind of things. One which is beautiful, second which is useful. But which is the best buy? One which is beautiful as well as useful. So when you'll go in the market, you want to get a job or you want to become something, they'll judge you from your outside also and they'll judge you from inside also. भाई मान लो कल तुम लोग यंग लोग बड़े हो जाओगे, फिर शादी करोगे, तो तुम लोग लड़के को देखोगे, लड़की को देखोगे, तो बाहर से भी देखोगे और भीतर से भी देखोगे. अग्री, डिसअग्री? तो दोनों चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. उनको हमको बनाना चाहिए, और हम ये कर सकते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी कैन डेवलप आवरसेल्फ. अग्री? Then we understood that in order to work on a personality in this 21st century, the most important skill is communication. And in communication, we have to work in 3 areas. One is verbal, second is non-verbal, and third is vocal. When we say verbal, it means any language in which I have to talk to people, I got to master that language, and it is possible. All people sitting in this room, those who are learning English, kindly devote coming 2 years to your language with love and affection. आने वाले 2 साल अपनी भाषा को दीजिए आप. हमारे पास 3, 4, 6 महीने जो रुकोगे एनफ, उसके बाद भी इसके पीछे पड़े रहो. Within 2 years you will be able to gain very good proficiency. जीवन के 2 साल इसके नाम दे दीजिए. If you are able to acquire the skill in these coming 2 years, for rest of life you will be a happy and cheerful man. Second is your body language. Work with the expression, work with your posture, work with your gesture. सिर्फ किताब पढ़कर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगा. तुमको उस पोस्चर, उस जेस्चर का प्रैक्टिस करना होगा. तुमको मुस्कुराना होगा, वरना मुस्कुराहट निकलेगी नहीं. गंभीर चेहरा होगा तुम्हारा, और जब तुम उस गंभीर चेहरे से किसी को देखोगे, उसको घबराहट हो सकती है. यस और नो? और ऐसे किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए आपको. आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिससे भी संपर्क में आए उसको आप कुछ सुख प्रदान कर सके. दैट इज व्हाट इज योर रोल. हैव यू सीन लॉर्ड कृष्णा? हाउ इज ही? हाउ ब्यूटीफुल ना. उसको देखो कैसा आनंद आता है कृष्णा को देख के. लुक हिम, ऑलवेज वेल डेकोरेटेड, सो चार्मिंग, सो ब्यूटीफुल, एंड पीपल अराउंड हिम डांस. Krishna means what? Dance. Krishna means what? Cheerfulness. Krishna means what? Happiness. Krishna means what? Confidence. सीखो उससे. सबसे खूबसूरत भगवान, और ऐसा भगवान जिसने हर फॉर्म में अपनी पूजा कराई. बच्चे के तौर पे भी पूजा हो रही है, लड्डू गोपाल. जवान हो जाते हैं तो गोपियां नाच रही हैं, वहां भी कोई टेंशन नहीं है. और आगे चलते हैं तो भैया गीता का ज्ञान भी दे देते हैं. गीता का ज्ञान कोई छोटा मोटा जवान आदमी नहीं देगा. कौन देगा? जो बुद्धि के स्तर पर पूरे ज्ञान को प्राप्त कर चुका. कृष्णा इज ग्रेट. कृष्णा इज ग्रेट. ही इज somebody who is telling you what life is.
वो बताता है जीवन क्या है, जीवन आनंद है, जीवन मुस्कुराहट है, जीवन चेयरफुलनेस है, जीवन मोहब्बत है। और किसके साथ? खुद के साथ। ये नहीं कि वो उसके साथ, उसके वो नहीं, खुद के साथ। खुद से मोहब्बत करोगे तो तुमको और कोई नहीं चाहिए। जब खुद से नहीं है तो तुम ढूंढते हो कोई तो मिले किसी कैफे में, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। A boy is waiting that one day a girl will come in my life and she's going to fill my life with love. Girl is also waiting that boy will come in my life and that boy will fill my life with love. एक इंतजार कर रहा है कि घोड़े पे बैठ के आएगा, दूसरा इंतजार कर रहा है कि वो आएगी और मेरे जीवन को किससे भर देगी? प्यार से भर देगी। और एक दिन ऐसा होता है कि ये दोनों भिखारी मिल जाते हैं। अच्छा बताओ, जब दो भिखारी मिलेंगे तो क्या बढ़ेगा? मांगना बढ़ेगा ना, दे दे प्यार दे, प्यार दे। You got to love yourself. You got to love yourself. खुद से मोहब्बत कीजिए। This is required because you are ultimate ना। तुम हो क्या? तुम लाइफ हो। You are a life. You are Krishna. Everybody is Krishna. Everybody is God. What do you have to do? You have to be as cheerful as He is. But that is possible only when you accept. And you accept that your possibility, when you accept that your potential, when you accept that you are born to commit certain mistakes, when you forgive yourself for committing those mistakes, when you allow yourself to put more efforts, and you wake up in the morning with all cheerfulness, and when you go to bed you enjoy with all carefree nature, and in the morning again you wake up, you go face all the challenges, and then again ये चलता रहेगा सर्कल ऐसा। देखो मशीन में जब आपकी ऊपर नीचे चलती है तब तक तुम क्या होते हो? जीवित। जब एकदम हो गई तो क्या हो गए? मर गए। तो जीवन ऐसा ही है। पर ये होगा कब? जब तुम खुद से क्या करोगे? मोहब्बत करोगे। Then we understood that we have to work on body language. We understood that we have to work on our vocal communication. That means I need to bring emotions and mood to my voice when I'm talking to people. Then I understood that I have to add a very important element to my communication, and that is called hasya ras, that is called sense of humor. I must know how to pull others without making them feel offended. I must know how to handle when people pull me. No problem. कोई अगर आपकी खिंचाई करके थोड़ी देर के लिए हंस लेता तो उसको हंसने दो ना। डोंट फील बैड बिकॉज ऑफ हिज यूज, बिकॉज ऑफ फ्यू वर्ड्स यूज विच ही हैज डन। वो उसने कुछ बोल दिया, उसको गंभीरता से मत लीजिए। हो जाता है कभी कभी, कभी तुम एम्बैरेस्ड भी हो जाओगे। इज इट ओके टू फील एम्बैरेस्ड और नॉट? देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, एनी ऑफ यू इफ इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज रिस्पेक्ट, ही विल नॉट ग्रो इन लाइफ। Students should have no respect at all. They should always remember that they will be embarrassed, they will be insulted and they'll be mocked at. उनको तैयार रहना चाहिए कि उनका मजाक भी उड़ेगा, उनकी खिंचाई भी होगी और उनकी बार बार बेइज्जती होगी। जो जितनी बेइज्जती सहन करने की क्षमता रखेगा वही उतना आगे जाके क्या होगा? शानदार बनेगा। लेकिन जो लेके चला कि मेरा एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, मेरी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि एकदम डिफेंस रहेगा, डिफेंसिव रहेगा। आई शुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इफ आई डू समथिंग पीपल मे मेक फन ऑफ मी एंड इट इज गोइंग टू मेक मी फील एम्बैरेस्ड। वेन एवर यू डू समथिंग, बी रेडी। नॉट ओनली बी रेडी, ट्राई समथिंग बाय विच you can be embarrassed, because when you will be embarrassed, it means you are trying something you were not comfortable with, and while trying something you're not comfortable with, definitely mistakes are going to occur. तुमको कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, जब उसे करोगे तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे तो एम्बैरेस्ड होगे। उसके लिए तैयार रहिए। For example, you're coming here to learn English, and one day you decided that when I'm going to sit in the group, I'm going to talk very aggressively to people. And when you'll try to speak aggressively with the people, will you be able to handle it? No. पता चलेगा कभी वोकैबुलरी गड़बड़ हो रहा है, कभी सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है, उतने अच्छे से बोल नहीं पाए, सामने वाला तुमको देगा, तुमको बेइज्जती महसूस होगी। करो उसको महसूस, लेकिन करना मत छोड़ो। बट अगर तुमने जिद ठान लिया कि नहीं मैं बेइज्जती तो होने ही नहीं दूंगा, मैं तो इंग्लिश बोलूंगा ही उस दिन जिस दिन एकदम बढ़िया हो जाएगी, तो तुमको लगता है ऐसा कोई दिन आएगा कि एक दिन तुम सुबह सुबह उठोगे और तुमको एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर कोई शक्ति घुस गई है और आज एकदम शानदार इंग्लिश निकलने वाली है? ऐसा नहीं होगा ना। तुम रोज कुछ प्रयास करोगे,
उस प्रयास में नाकामयाब हो जाओगे, फिर करोगे, फिर नाकामयाब हो जाओगे, और जब रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, so after 3 months you will realize that there is a humongous change in what you are today and what you were on the first day. Agree, disagree? So all students, those who are into the learning process, please do not be very serious about your self-respect. Be ready to be embarrassed. आप embarrassed होने के लिए तैयार रहिए और अपनी बेइज्जती समय समय पर करवाते रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, काम आती है ये। yes or no? काम आएगी ना, आगे होगी तुम्हारी। तुमको लगता नहीं होगी, होनी है आगे। तुमको कोई गाली देगा, कुछ होगा, तुम्हारा बॉस कभी तुम्हारी बैंड बजाएगा, कभी तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तो उस समय क्या होती है? बेइज्जती होती। अपने को तो प्रैक्टिस है शुरू से, हम तो स्कूल से बेइज्जत होते आए, अभी कौन सी टेंशन है, तो वी कैन हैंडल इट। यस और नो? बट जो शुरू से ही नहीं हुआ बेइज्जत, उसके लिए कितना मुश्किल है फिर। ही इज नॉट एबल टू बियर दैट एंड देन ही गोज इनटू ट्रॉमा। राइट और रॉन्ग? Agree, disagree? Then we understood that after sense of humor we have to work, and we have to work with the first rule which says seek to understand then to be understood. आप ये चाहत मत रखिए कि लोग आपको समझें, आप इस शिक्षा को अपने अंदर लाइए, इस ज्ञान को अंदर लाइए, इस कला को अपने अंदर लाइए कि आप दूसरे को समझ सकें, आप दूसरे को समझ सकें। क्योंकि जो भी व्यक्ति कर रहा होता है उसके उस करने के पीछे कोई कारण होता है, आप वहाँ तक पहुँचिए। Communication is not only understanding what other person is saying to you, it is about understanding why is he saying that. ये जो कह रहा है ये क्यों कह रहा है, उसकी अगर समझ आ गई तुमको, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। Are you understanding it or not? If children are able to understand कि जो मेरे पापा मेरे को बार बार पैसे के लिए बोलता रहता है, इसका कारण है कि मेरे पापा ने जब जीवन का शुरुआत किया तो एक छोटे से गांव से किया, पैदल स्कूल जाते थे, मनी नहीं होती थी, तो इन्होंने बड़ा मेहनत से किया। तो अब ये जो मनी से रिलेटेड इनके थॉट आते हैं, कहाँ से आते हैं? उसी बैकग्राउंड से आते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो उस दौर को देखा। अब तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारा बापू पहले तुम्हारे लिए कार ले बैठा था, अब तुम्हारे पास तो वो विचार आ ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे पापा को भी ये समझ पैदा करनी है कि मेरा बेटा जो ये विचार नहीं ला पा रहा है, क्यों नहीं ला पा रहा है? क्योंकि बेटा जिस दिन पैदा हुआ था तो डिलीवरी लेकर गाड़ी में इसको घर लेकर आया और ये बचपन से ही गाड़ी में घूम रहा है। लेकिन तूने गाड़ी कब खरीदी? जब तेरा शादी हो गया, उससे पहले तू साइकिल और स्कूटर पे धक्के खाता, तो तू समझ सकता है, ये नहीं समझ सकता। दोनों को ये समझ चाहिए, जिसमें होगी वो ठीक रहेगा, जिसमें नहीं होगी वो दुखी होगा। गेटिंग इट और नॉट? We understood this and then we understood that everybody loves appreciation. हर किसी को क्या अच्छा लगता है? तारीफ अच्छी लगती है, तो हमको तारीफ करनी चाहिए। And next we understood कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वो यही सोचता है कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है। If we are able to develop all this, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। Right guys? So now I give you 5 to 7 minutes. And if there is any question in your mind, kindly ask. अगर आपके मन में सवाल हैं, कोई भी बात पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछिए, related to the topic or out of the topic also, but related to you and your personality, I will help you. आपको समय देता हूँ 5 से 7 मिनट, सवाल पूछिएगा। What is the time, भावना? 5 मिनट है। देखिए, जब कोई सवाल नहीं पूछता तो 2 घटनाएं घटती हैं। एक घटना सब कुछ आ गया और दूसरी कुछ नहीं आया। तो मैं पहली वाली को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अपना तो भाई एनर्जी लगा दिया, तो आई डोंट वांट कि तुमको नहीं समझ आया, मेरे हिसाब से तो आ गया। फिर भी मैं चाहूँगा तुम सवाल पूछो। क्वेश्चन पूछना अच्छा रहता है, ये आपके भीतर विचारों को पैदा करता है। एंड ऑल यू पीपल सिटिंग हियर, आप सब लोग अपने भीतर विचारों को लेकर आइए। ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इसके साथ एक समस्या है, और वो समस्या है विचारों की कमी। काइंडली रीड बुक्स। आप अपना समय मोबाइल टैबलेट्स पे कम लगाओ, और ये जो आप यूट्यूब पे देखते हो थोड़ा कम देखो, क्योंकि गार्बेज से भरा पड़ा है ये। जिसको तुम सोच रहे हो ना कि बहुत काम का है, कुछ काम का नहीं है, अंट शंट है सारा का सारा। और जब तक तुमको समझ आएगी इट्स टू लेट, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। वेरी सून वी विल एंटर इनटू अ वर्ल्ड ऑफ सुपरस्टिशन। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो अंधविश्वास से भरी होगी, फैनेटिसिज्म से भरी होगी, अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से भरी होगी, और उनको हम मानना शुरू कर देंगे। ये होने वाला है सबके साथ,
क्योंकि ये दौर है कंटेंट क्रिएशन का, और कंटेंट क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तुमको भी मालूम है, धंधे के लिए, ठीक है। और उसमें मालूम है कि धंधे के लिए अगर क्रिएट करना है तो कौन सा चलेगा, और चलता कौन सा, जो आपकी लस्ट को सैशिएट करे, या फिर जो आपकी क्यूरियोसिटी को सैशिएट करे, या आपके आगे बड़े बड़े क्लेम्स करके दे कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। सिर्फ काम करने से ही चीज़ें होती हैं, और एक तरीका है, उसी तरीके से काम करने से होंगी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चाय बनाने के लिए तुमको पहले गैस ऑन करनी पड़ेगी, फिर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी को उबालना है, उसमें चाय पत्ती भी डलेगी, अमाउंट ऑफ शुगर डलेगा, फिर उसके अलावा तुमको जो भी स्पाइसेस ऐड ऑन करने हैं वो ऐड करोगे, मिल्क ऐड करोगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुमने उसको उबाला, तभी चाय बनेगी। तुम्हारी चाहत से चाय बनने वाली नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इंग्लिश मेहनत करने से आएगी। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बोलते हैं, अरे क्या रखा है इंग्लिश में, बस बोलो आ जाएगी। अरे बेटा ऐसे नहीं आती है, जो सिखाते हैं उनसे पूछ ले कैसे आती है, कैसे आती है, एक तरीके को फॉलो करके आती है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये सब पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा तुमको एक जुनून के साथ कूदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या गया हुआ, हिंदी। व्हाट्स इन आवर सिस्टम? हिंदी ना। और मैं बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू बी अ कम्युनिकेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपली बाय विशिंग इट कांट बी पॉसिबल। आई हैव टू गिव हैबिट टू माई न्यूरो एंड मस्कुलर सिस्टम, और उसके लिए जो तरीका मैंने बताया ये करना पड़ेगा। न्यूरो इज ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर केमिकल होता है जिससे आपके पाथवेज डेवलप होते हैं, न्यूरो पाथवेज, उनके अंदर वो सारी मेमोरीज बनती है। हैव यू सीन कंप्यूटर मदरबोर्ड? तो उसमें तुम देखते हो सर्किट बना हुआ है, ओके। ऐसे ही तुम्हारे ब्रेन में जब तुम सीखते हो तो सर्किट बन जाते हैं, और उन्हीं सर्किट से तुम अपनी मेमोरी को रिटेन करते हो। सो व्हेन यू वांट टू टॉक टू पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो मस्कुलर सिस्टम तुम्हारी मसल्स को, और न्यूरो सिस्टम तुम्हारे ब्रेन के अंदर, जब तुम कोई चीज़ लिखते हो, कोई चीज़ याद करते हो, तो वो न्यूरो सिस्टम में चली जाती है। जब तुम उसको लाउडली बोलते हो, इनैक्ट करते हो, तो तुम्हारे मस्कुलर सिस्टम में चली जाती है। गॉट इट? यस, यू वांट टू आस्क? या ओके। 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 उनका भी एज क्या है? नहीं, बच्चे का 1.5 साल है ना, वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। हाँ, तो उसमें आप ये देखिए कि कोई ऐसा एरिया है जो आपकी एनर्जी को इतना कंज्यूम कर ले रहा है कि उसके साथ जो समय जाना चाहिए वहाँ पर वो उस एनर्जी का प्रेशर है आप पे, उस हिस्से को थोड़ा कम कीजिए। आर यू वर्किंग और व्हाट? आप जॉब करते हैं? अच्छा, और लैपटॉप पे ये सारा चलता होगा ना, तो थोड़ा सा आप अपने लिए समय लगा कर, निकाल कर अपनी मेंटल पीस के लिए काम कीजिए। बिकॉज नॉर्मली दोज हु वर्क ऑन गैजेट्स, so their exposure to the screen is very high, because of which they are not able to have equanimity in their emotions and in their moods. तो अपने मूड और इमोशन में उनके बैलेंस नहीं होता है। सो फॉर यू आई वुड रेकमेंड कि आप डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स का सेल्फ टाइम निकालें, जिसमें आप चाहे साइलेंस में थोड़ी देर बैठें, या चैंटिंग करें, या आप मेडिटेशन करें, योगा करें, जो भी आपकी कोई प्रैक्टिस आपने सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखा तो उसको सीखें और उसको करें। और बच्चे को बढ़ते हुए देखें, बच्चा जब है उसकी हर हरकत को देखिए और उसको एंजॉय करो, कितनी भी स्टूपिड हो। आप ये मानो ही मत ये स्टूपिड है, आप क्यों बोल रहे? सी आई एम टेलिंग इट ऑल यंग पीपल, माई सन व्हेन ही वाज टू यंग, नॉट इवन टू यंग, बट इवन जब वो 5-6 साल का भी था, ओके, नो लिसन ऑल ऑफ यू, और उसको जब सुसु आता था, तो वो दौड़ के गेट से बाहर जाता था, बाहर ग्रीन बेल्ट पे खड़ा होकर रोड पे मैप बनाता था। मुझे टेंशन नहीं थी। अब आपके हिसाब से सही है गलत है? अब मैं उसको बोलूं बेटा जब मैप बनाएगा, वो देखिए ना, उसको कॉन्शियसनेस नहीं है बॉडी की। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हम अपनी बॉडी को लेके जब कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम थोड़ा शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं ना, कि ढको। उससे पहले तो बच्चे को तो है ही नहीं, तो बच्चा प्योर है, दैट्स व्हाई से ही इज गॉड।
Why do we say child is God? Because he doesn't have any consciousness of body, of religion, of caste, of good or bad. बच्चे ने अगर shit किया वो shit में भी खेल लेगा. He doesn't feel bad sitting on the shit. He is pure. हम क्यों उसको इतनी जल्दी प्रोग्राम कर रहे हैं? Are you understanding what I'm trying to say? मैं enjoy करता था. When we used to go to shopping, हमको मालूम है उसका बेस्ट पार्ट टाइम क्या है? टाइल पे लेटना. और इतना लेटना कि कई बार वो लेटते लेटते वहां सो जाता था. वंस वी वेंट टू गुड़गांव, वहां पे एक लाइफस्टाइल करके वो है पूरा मॉल बना हुआ है, एंड वी वेंट देयर, वी वर बाइंग समथिंग, एंड आफ्टर दैट वी फाउंड रुद्राक्ष इज नॉट अवेलेबल. वी सेड यार बेटा नहीं है. ही सेड सर ये 2 फ्लोर है, नीचे देखते, नीचे देखा वहां भी नहीं है. ऊपर घबराहट होनी लगती कि बच्चा कहाँ चला गया. दे सेड सर डोंट वरी, यहीं पर होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, सीसीटीवी में सब आ जाएगा अगर बाहर गया होगा. एंड वी वर फाइंडिंग, हम ऊपर आए, सीसीटीवी वाला कॉर्नर में लगा था, तभी आवाज आती है पापा. तो देखा कहाँ, जो कपड़ों के स्टॉल होते उसके बीच में छुप गया. अब क्या करना चाहिए था मुझे? कुछ नहीं. मैंने कहा तू सही है यार, तूने तो हमारा टेम्परेचर आई. कह रहा मैं देख रहा था आप मुझे ढूंढ रहे. अब मैं उसको मार भी सकता था वहाँ पे, बट आई डिडंट डू दैट. बट लेटर ऑन आई सेड बेटा हार्ट फेल हो जाता है, तू मजाक समझ रहा है इसे, ऐसे हार्ट फेल हो सकता है. मैंने कहा सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बच्चा कर रहा है वो गलत नहीं है, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन है या मेरे साथ कुछ इशू है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये ना करे, क्योंकि ये करने से मेरा कुछ समय या मेरा अटेंशन ये लेके जा रहा है. और अगर बच्चा आपका अटेंशन ले रहा है ऐसी हरकतें करके, इसका मतलब आप उसे प्रॉपर अटेंशन दे नहीं रहे हो, उसको आपका अटेंशन चाहिए. अदरवाइज चाइल्ड विल ट्राई टू डू समथिंग टू सीक योर अटेंशन. बहुत से बच्चे देखिएगा मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार पड़ते हैं बार बार. क्यों पड़ते हैं बीमार? क्योंकि उनको पता है जब वो बीमार होते हैं तो मम्मी पापा दोनों साथ बैठे होते हैं, तो फिर वो बीमारी को मैनिफेस्ट करता है. क्योंकि नॉर्मल टाइम पे उसको क्या नहीं मिल रहा, अपने माँ बाप का समय नहीं मिल रहा है. तो जब वो देखता बीमार होता है तो माँ अपने हाथ से खिला रही है, पापा भी वहीं बैठ रहे हैं, दुलार रहे हैं, तो अब वो मैनिफेस्ट करता है बीमारी को अननोइंगली, उसको मालूम नहीं है, बट वो बीमार हो रहा है बार बार. सो लेट हर डू व्हाट शी इज डूइंग और ही इज डूइंग, एंड लेट देम डू दिस टिल दे आर 10-11. हाँ, उससे पहले आप अपनी हैबिट्स ऐसे रखिए कि वो आपको जब देखे तो वो देखे उन चीज़ों को जो उसके अंदर आनी चाहिए. आप जो कहोगे वो नहीं करेगा, आप जो करोगे वो करेगा. प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी. चिल्ड्रन डू नॉट डू व्हाट पेरेंट्स से देम टू डू, चिल्ड्रन डू व्हाट देयर पेरेंट्स डू. जो माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चा उसको सीखता है, उसको नहीं सीखता है जो माँ बाप बोल रहे होते हैं. तो हमको बीइंग अ पेरेंट इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे एक्शन ठीक हो. हम क्या बोल रहे हैं उसको उसने सुनना ही नहीं है, और वो ना सुने अच्छी बात है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको वो पकड़ेगा. तो हमारा करना ठीक होना चाहिए. सो डूइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. Right? Any other question? देखो मैम, उसमें आपको ये इवेलुएट करना पड़ेगा किस एरिया में आपके नंबर ख़राब हो जाते हैं, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि और स्कोर हो सकता है. वन थिंग नहीं, लेकिन आप जब अपीयर करके आते होंगे तो आपको भी आइडिया होता होगा कि कहाँ पर मिस हो रहा है, उस हिस्से पे थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए. वन थिंग. अब दूसरा चीज़ आप सभी सुन लीजिए यहाँ पे. हाँ, आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ. बोलिए लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स. बोलिए एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए. ये नियम है कुदरत का कि आप जितने भी प्रयास डालेंगे उसमें से 80% बेकार चले जाते हैं. लिसन वेरी केयरफुली, ये नियम है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल और मई के महीने में जब आप आम के पेड़ को देखेंगे, अप्रैल में स्पेशली, तो फूल से भर जाता है पूरा. यस और नो? फिर उसमें जब छोटे छोटे आम लगते हैं तो वो भी खूब होते हैं, लेकिन जब फाइनली आम उसमें पूरा बनता है वो सिर्फ 20% बनता है, 80% गिर जाता है. जब बारिश होती है तो दबाकर पानी गिरता है, लेकिन इसमें से 80% पानी वेस्ट हो जाता है, सिर्फ 20% हमारे काम आता है. 80% समुद्र में चला जाएगा या जो भी है वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 20% हमारे काम आएगा.
जब मछली अंडे देती है उसमें से 20% ही मछलियाँ कन्वर्ट होती हैं, 80% बर्बाद हो जाता है। तो ये कुदरत का नियम होता है कि जब हम कुछ करते हैं उसमें से 80% वेस्ट चला जाता है। और जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ये तब मिलेगी जब आप बिल्कुल होशियार हों, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपके एफर्ट्स बेकार जाते हैं, मालूम नहीं कौन से एफर्ट पे हिट होने वाला है, तो एफर्ट डालते रहिए जब तक आपके पास मौका है और पूरे जोश के साथ डालिए। लेकिन उसके साथ इस चीज़ को भी एडमिट कीजिए कि जब कॉम्पिटिटिव एरा होता है तो इसमें पूरी संभावना होती है कि आपके होशियार होने के बावजूद भी आपको ना मिले, तो इसका स्कोप भी लेकर चलिएगा। बट जब तक एफर्ट्स हैं पूरा जोर लगा दो, अगर उसके प्रति आपकी वो लगाव है तो पूरा जोर लगा दो और फेथ के साथ लगाओ कि मुझको मिलेगा। आप अपनी तरह से ये डाउट मत रखो कि मुझे मिलना है नहीं मिलना है, आप पूरी इससे रहो कि मुझको मिलेगा, बस वो टाइम आने वाला है, कब मिलेगा। अभी थोड़ी प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं है, अगले वाले में हो जाएगी ठीक। और अगले वाले में जब करो तो इससे थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा दो। भाई पिछली बार में अगर मान लीजिए आपने 4 घंटे की है तो इस बार जरा 4.5 घंटे ट्राई करके देखो, हो सकता है कुछ बेटरमेंट हो। आप आखिरी एफर्ट तक उसको पूरा कंज्यूम करो, बट इस समझ के साथ कि कई बार जीवन में सब कुछ चाहने के होने के बावजूद भी चीज़ नहीं मिलती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर मैं आज चाहूँ कि मेरे को अपनी बॉडी ठीक करनी है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मैंने खुद पर काम करना है। लेकिन अगर एक नौकरी है जहाँ पे 2 की वैकेंसी और हम सब पेपर देने जा रहे हैं, तो मुझको ये समझ रखनी पड़ेगी कि इन सब में से हम में से सिर्फ 2 को मिलनी है, बाकी को तो मिलनी ही नहीं है क्योंकि वैकेंसी कितनी है 2 की। तो फिर उसमें डिसअपॉइंटमेंट को लेके आगे नहीं चलना चाहिए। मिलेगा, पूरा एफर्ट डालूंगा, पूरा जोर डालूंगा, तुम भी डाल रहे हो, ये भी डाल रहे हो सकता है जिस दिन सिलेक्शन होनी है इसका दिन था, तुम्हारा नहीं था। सचिन एवरी टाइम व्हेन केम ऑन द क्रीज ही केम विद एन आइडिया ऑफ हिटिंग अ सेंचुरी। क्या जिसमें वो सेंचुरी बनाता तो उसमें अच्छा था और जिसमें वो 0 पे आउट हो जाता तो उसमें खराब था? हर बार एक ही सचिन होता था, उसी पैशन के साथ आता था, उसी प्रैक्टिस के साथ आता था, बट कभी उसका दिन था वो सेंचुरी बना देता था, कभी नहीं बनती थी। तो ये समझ हर किसी को रखनी होती है। एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एंड रिजल्ट हमको एक्सेप्टेड है। लाइफ का अप्रोच ही आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी काइंड ऑफ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद एफर्ट्स, बट एट द सेम टाइम एंड में जो परिणाम आएगा मैं उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। गेटिंग इट और नॉट? That's all guys. तो चलिए guys, then see you in some other session. फिर किसी और टॉपिक पे हम लोग विषय पे बात करेंगे। आप इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, इस पर काम कीजिए। कम्युनिकेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप आए हो इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए। व्हाट्सएवर टाइम यू हैव डिसाइडेड 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, उसको पूरी शिद्दत के साथ दीजिए, एंड देन सी द मिरेकल हैपनिंग एंड एंजॉय योर चेयरफुल लाइफ देन।